أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سنی ٹی وی کی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں مناظرہ جو حضرت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی مدظل العالی اور مولانا عابد جلالی صاحب کے درمیان 13 جون 2011 بروز سوموار گلزار قائد راولپنڈی میں منعقد ہوا، اس کی مکمل ویڈیو پیش کرتے ہیں. اس مناظرہ کے لیے فریقین کی جانب سے ثالث مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب کو مقرر کیا گیا، جن کی سرپرستی میں 6 جون کو دارالعلوم انوار رضا راولپنڈی میں اس مناظرے کی شرائط میں یہ طے ہوا کہ عنوان مناظرہ یہ ہوگا کہ نعرہ تحقیق کا جواب مصاب کیا ہے، اور شرائط میں یہ بھی طے پایا گیا کہ دوران مناظرہ کسی بھی غیر اخلاقی، غیر معیاری اور تقدس سے گری ہوئی گفتگو نہیں کی جائے گی. ان شرائط پر فریقین کی جانب سے دستخط بھی کیے گئے. مفتی عابد جلالی صاحب کا موقف تھا کہ نعرہ تحقیق کا جواب حق 4 یار ہونا چاہیے، اور قبلہ شاہ صاحب کا موقف تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب صحابہ حق پر ہیں، اس لیے اس کا جواب حق سب یار ہونا چاہیے. اب کیونکہ اس مناظرے کے لیے کسی فرد واحد کو منصف نہیں مقرر کیا گیا بلکہ اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑا گیا ہے، تو ہماری تمام عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اس مناظرے کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے، کس نے شرائط مناظرہ کی خلاف ورزی کی ہے اور کون موضوع مناظرہ سے پھرا ہے. آپ تنزیہ بات نہ کریں، تحقیقی بات. آپ تنزیہ بات نہ کریں، تحقیقی بات کریں. کیوں طرز کرتے ہیں صحابہ پہ؟ یہ اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ورنہ ہم تو وہ ہیں جو بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، ہم پھر بھی اس بات پہ ہیں. لیکن جو صحابہ پہ تان کرے گا، میرے حضور فرما رہے اس پر رب کی لعنت ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں جو آل بیت پر بھی کرے گا اس پر بھی لعنت ہے. اس پر بھی لعنت ہے. میں کہتا ہوں صحابہ اور آل بیت پوری زندگی میں کبھی میں نے اپنی شعور کے حالت میں کبھی بھی غشیداری ہو جاتی ہے جی جب حضرت عمر کے بارے میں بولتے ہیں. یہ لغو باتیں آپ کر رہے ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں. یہ پہلے یہ مناظرہ طے ہو لینے دیں. شعور ہو جاتے ہیں اس کے یہ تو مان لینا کہ جب صحابہ کو آپ تان کرتے ہیں بالکل طنز نہیں کرتا، بالکل طنز نہیں کرتا. اس وقت آپ خارج از موضوع بات کریں، بات کو ٹالنے کے لیے. یہ موضوع اب یہی ہے کہ نعرہ تحقیق کا جواب مصاب کیا ہے. جواب مصاب آپ حق 4 یار کہیں، میں کہوں گا حق سب یار. میں ابھی دلائل پیش کروں گا. میں آپ کے سامنے شور کیوں کرتے ہو؟ شور کیوں کرتے ہو؟ شور کیوں کرتے ہو؟ ہرگز حق سب یار سے کیوں بھاگتے ہو؟ 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 حق سب یار ماننے پڑیں گے تمہیں، حق سب یار ماننے پڑیں گے. ہم سب مل کے شور کریں گے. اگر آپ بازو نہیں کریں گے کیوں حق سب یار کو نہیں مانتے؟ حق سب یار میں میری بات سنو. آپ کو دلائل کے ساتھ مقابلہ جواب لا سکے، پھر جواب لا سکے اس کا جواب کیا لا سکے؟ سغرا کبرا بتایا، جواب لا سکے. آپ کہیں آپ حق 4 یار پہ منع ورد کرتے، آپ سب یار کو منع کرتے، حق 4 یار پہ منع ورد کر سکتے؟ میں ہرگز جرأت کریں آپ بولیں کہ حق 4 یار پہ منع ورد کر سکتے؟ نہیں، میں کہتا ہوں جو حق سب یار حق سب یار کو، میں کہتا ہوں کہ حق سب یار جو کہتا ہوں اس کو حق یار آپ تقیہ کرتے ہیں جی، آپ چھپاتے ہیں. خلفائے ثلاثہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. جب لالا حیدری لگائیں خلفائے ثلاثہ کے دن مناتا ہوں. خلفائے ثلاثہ پر کتابیں لکھی ہیں. پھر صاحب کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ باقی صحابہ بہت سے لے معذرہ بتاؤ مجھے کیسے نعرہ لگاتے ہو آپ نعرہ حیدری کا؟ ہم تو کہتے ہیں وہ بھی نعرہ سچا ہے
ये भी नारा सच्चा है। पहले बंद करते थे, इस नारा हैदरी के बाद फिर आपने बंद करना बंद किया। चाहते अबे तो मैं वो भी पेश करूंगा। आपने कहा था जेड़े औहदियां ते हुजूर दे जमाने रह चुके ने उन्हां औहदियां तो आया गया है, क़यामत नूं पूछया जाएगा गल की है, शाह जी दी गल वीडियो विच पई है, ए सारे बंदे ने सामने होने। आप चार यार दे उत्ते गल कर लो जी, हो सकती है ते अक्सा भी यार लो तुसी छेड़ नहीं सकते क्योंकि गुस्ताख ते सहाबा दे खुद हो बैठे हो। अस्तगफिरुल्लाह। ये बात एक बारी मेरी वीडियो वाले शुमार हो रहे हैं कितनी बारी तौबा करेंगे। ये लायानी बात कर रहे हैं आप, इसकी कोई बुनियाद लायानी बात है। अभी मुनाजरे को आगे चलने देना, फिर इसका तो बात होगी ना। आपने तो कहा था कि ऐसे फारिग कर देंगे हम, ये हवा में कौन बातें करता है? आप असल मौजूद से हटते हैं। एक दलील जो पेश किया उसका जवाब ला सके, शोर ही मचाया, उसके मुकाबले में सिर्फ शोर मचाया। जो पहली जो मेरे आयत पेश किया उसका जवाब ला सके, खुदा का खौफ करो। बताओ इसका तोड़ है एक आयत जी, दसो मशवरा कर लो। अब आपने अगर उन्मान पर चलना है 10 मिनट, फिर बैठना सीखना। आप 4 यार के मौजू पर और अगर नाराए तहकीक का जवाब है मुसाफ। आप हक 4 यार कहें ना, मैं सब ये है लाजवाब, जिसका जवाब मैं कहता हूँ कि ये है वो जवाब जो है लाजवाब। शोर क्यों, आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। शोर करें, तो नारा लगाना पड़ेगा। अच्छी तरह शोर, दुनिया को बताना अच्छी पड़ेगा। तरह शोर करें, अच्छी तरह शोर करें। लगाना पड़ेगा आप और उसके कलम से एक लिखवाना पड़ेगा आयत कि पे नारा तहकीक का जवाब है हक 4 यार। एक ये आयत पेश किया उसका जवाब ला सके हो, नहीं ला सके, सिर्फ शोर किया है। आयत का जवाब आयत से होता है, आयत का जवाब दिया आपने। कर सकते हो, मैं ये कहता हूँ जी, कोई निशाना सामने रख सकते हो। मौजू है हक 4 यार। हक 4 यार मौजू नहीं, हक 4 यार मौजू नहीं। किताब में लिखा हुआ देखे, लिखा हुआ देखे मौलवी साहब, जवाब सामने अगर है तो एक आयत पेश की है, जवाब ला सके हो, ये आयत पेश की है। क्या आयत पेश की है? फिर कुरान पे हाथ मार के फिर वो कहते हैं ये कुरान मजीद नहीं है, अब उठा दिया है। ये कुरान मजीद है। अच्छी तरह बच्चों की तरह हंसें। मौलाना ये आपकी शान के लायक नहीं, आपको अपने मुंह मुबारक पर दाढ़ी नजर नहीं आती। हम आपके बारे में नहीं कह सकते। नहीं। आपने क्यों ये गैर ताजीबी बात की है? कौन सी? ये जो भी की है, क्या आपके बारे में बात हो तो ये तो अखलाक से गिरी हुई है। और आप सहाबा के बारे में भी करते तो अस्तगफिरुल्लाह, क्यों ये बातें लायानी करते हैं? मैंने 4 यार के मौजू से फरार क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ आपको हक सब यार से क्यों फिरार करे। मैंने कुरान मजीद की आयत पेश की है, आयत का जवाब आयत है, आयत का जवाब आयत है। आपने आयत का जवाब आयत से दिया है, सिर्फ शोर में चाहे। मौलाना एक दलील पेश करो जो बंदा नारा लगाता है। बात खत्म करता हूँ मैं इस पे। आपके पास अगर हिम्मत है इल्मी तो उसका जवाब दो। अगर हक 4 यार का नारा लगाते हैं, 4 यारों का नारा लगाते हैं, मेरी तरफ देखो, तो आप कहते हैं बाकी के हक होने की नफी होती है। साबित करूंगा, जवाब दो, साबित करूंगा। अगर नारा हैदरी लगाएं तो बाकी की शुजाअत की नफी होती है। ये बात चलने दे। अभी मैं आपको एक बात में आपको साबित करूंगा। आपको ये बात ये आगे चलने दे रहे उसको, इसको रोशनी है उसमें जरा देखो, इंसाफ से बात करो। अभी थोड़ा सा आगे चले नफी मौजूद है, यार में तो नफी भी मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ आप इसको आगे चलने देना। आगे चलने कैसे देना? एक आयत जो जवाब देना, एक आयत जो पेश की है, जवाब ना दे तो एक आयत का जवाब आप दे सके। आपसे सिर्फ शोर मचाया, शोर मचाने के सिवा मौलाना शोर मैं गलत कहते हो। मैंने हक सब यार पर शोर करें, शोर और शोर करें और शोर करें। मैंने कुरान मजीद की चाहे मैं शोर करूं चाहे मैं जोर लगाऊं, शाह साहब की बात सुने, वो आपको खान में बताना जी। सुन ले देखो ये वीडियो तो लगाओ यार, मशवरा कर लेने शाह साहब को, कोई बात नहीं है। ये आपसे तो बात नहीं करते ना। बात बंद हो गई है इंटरनेट से। ये क्या हो रहा है जनाब? हम रावलपिंडी में आए हैं शाह साहब, ये आपका शहर है, तो ये सलूक हमारे साथ हो रहा है। यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा और नेट के अंदर कभी आवाज बंद हो जाती है। मेरी बात सुनो, जवाब आपको नहीं आ रहा।
तो नेट वे- कौन बंद करवाता खुदा है? का खौफ करो, नेट किसने लगवाया? खुदा का खौफ करो। मुझे जवाब नहीं आ रहा। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पेश की, एक आयत पेश की, उसका जवाब ला सके हो? जवाब देने से बंद आयत का जवाब ला नहीं सके हो, आयत का जवाब शोर के जरिए से देते हो। जवाब देने से अगर बंद हो जाए तो नेट बंद हो जाए तो वो कहते हैं नहीं, कौन सा मसला है? एक आयत में जो मैंने पेश की है उसका तोड़ पेश किया है, नहीं सकते शाह साहब, उसका आप तोड़ पेश- बतावे निकालूंगा गुस्ताखे से हवा के ते लग पते जाएंगे, वरना आ जाओ इस पास से मान लो हुन भी बेड़ा दे, हुन भी बेड़ा दे। मुफ्ती साहब इनको कहें मुफ्ती साहब खौफे खुदा करें। याद से बात करें, जिस पर करने से ये लंदन से चले और यहाँ बा- आके फिर नारा लग जाए तो हम क्या करें? मेरी- हमारा क्या कसूर है? ये इसकी सदाकत है। सदाकत होती वो है जो यार के मुंह से भी निकल आती है। उठाओ अखबार उलमा, कहते हैं भूल से लग गया। मैंने कहा क्या अच्छा होता, कहते कि वैसे दिल से लग गया। मैं ये आयत मैंने पेश की है, आयत मैंने पेश की है। अब सब यार ये शोर करने के सिवा कुछ ला सके? ला सके आयत के मुकाबले में आयत होती है। आपको दिखा सके। हमने मैंने दावा किया अक्सर यार पर मैंने पेश कर दिया। आपने कहा तो वो फरार कर रहे हैं। अभी तुमने ये मुफ्ती साहब को कहा था आबिद जिलाली तो बीमार हो गया। मैंने कहा आबिद जिलाली बीमारियां ठीक करके मेरी बीमार होगा, अल्लाह का फजल हो गए थे। ये सब आपकी सब आपकी ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातें जिस तरह आपने खबरें हमारी तरफ मंसूब की हैं, इसी तरह ये भी बातें आपने की तरफ, ये बात गलत है। एक बात करो, चार यार हक नहीं है तो इस पे दलील लाओ, अगर हक है तो मान जाओ। मैं कहता हूँ अक्सर यार पर दलील लाया हूँ, तोड़ ला सके हो, तोड़ ला सके हो। उसका जवाब नाराए तहकीक का जवाब, नाराए तहकीक का जवाब, नाराए तहकीक का जवाब हक सब यार, नाराए तहकीक का जवाब हक सब यार से साबित किया है। मुरीदों को पता चल गया है कि शाह साहब के पल्ले कुछ नहीं है, ये बात छोड़ जाएंगे। ये कि मान लो अभी अंदर बैठे हुए, ये अभी अंदर बैठकर मान आपने लो कि आप चार यार का नारा सच्चा है, हक सब यार का नारा सच्चा, फरमा रहे हैं सच्चा है, आपको क्या मसला है? मैं कहता हूँ मैंने आयत कुरान मजीद की पेश की है, कुरान मजीद की आयत पेश की है जिसमें यह वाज़े किया हक सब यार। आप इस दलील को तोड़े, आप इस दलील को तोड़े। आपके पास कोई दलील ही नहीं है। कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद की आयत है। वल्लज़ीना माअहू, वल्लज़ीना माअहू, हाँ। तफसीर दुर्रे मंसूर है, तफसीर समरकंदी है और ये अल गुनिया है और रिवायत करने वाले इमाम मोहम्मद बाकिर हैं, इमाम जाफर सादिक हैं। 10 मिनट का दे, 10 मिनट आपने पिराने पीर की माननी है, 10 मिनट आपने ज़मीर की मौलाना माननी है। इसी मजमून पर इसके मजमून पर 10 मिनट दें। इन्होंने हक चार यार साबित कर रहा है, मैंने हक सब यार साबित कर रहा है। ये हक चार यार का मौजूद छेड़ रहे हैं और शाह साहब फरमाते हैं कि हमें छेड़ रहे हैं। नहीं, ये क्या मसला है? चाहे ये हुआ मौलवी साहब आपके दस्तखत उस पर हैं कि नहीं? हक चार यार का मौजूद है कि नहीं? हक चार यार का मौजू नहीं, नाराए तहकीक मौजू है, नाराए तहकीक मौजू है। उसका तो आप मान चुके हैं कि नारा तहकीक ठीक है, उसके पहले नहीं मानते थे नहीं, और कहते थे कि नारा होती ये है जिस तरह वो बैल के उसकी दुम पे दंडी लगाई जाती है। नहीं, शाह साहब आप तकरीर करते हैं, मुझे एक बात का जवाब दें। उसके जब आप तकरीर करते हैं तो लोग नारा लगाते हैं, ये दंडी कहाँ पे लगाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात सुनो, मेरी आपके तकरीर में शोर 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 तकरीर में डोल डोल गले में डाल के कूटो। नारा लगाया वो दंडी कहाँ पे लगाता है? मैं कहता हूँ नारा तहकीक उसका मौजू नहीं है। जो नारा तहकीक का जवाब मुसाब क्या है? नारा तहकीक का जवाब मुसाब, नारा तहकीक का शोर तो किया है ना। अक्सर यार की बात करते हो ना, मैं भी आपकी जितनी केस्ट निकालूंगा ना उनमें अली 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 एक भी नारा अक्सर यार का लगाते हो, ये मार कहते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ये राफजियत छुपाते हो, ये छुपाई ना जाएगी। मौलवी साहब ये अपने अल्फाज वापस लो, कल कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें। गुस्ताखी की है, जवाब दो मुझे। आओ मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ और तुम्हारे सामने दलील पेश कर रहा हूँ। मौलवी साहब इस बंदे को बंद करो। बजाय ज़ातियात के मसाइल पर आए तो ज्यादा अच्छा है।
دیکھیں وقت ضائع کرنا جناب یہ آئیں گے کدھر اس طرف آئیں گے نہیں. ٹھیک ہے ورنہ وقت ضائع ہوگا اور یہ اچھی بات ہے. ظاہر ہے وقت تو ضائع ہونا ہے جب یہ مانیں گے. یہ قرآن مجید کی آیت کا جواب دو، اس کے بعد بات چلے گی. ایت کس پہ ہے؟ ایت کس پہ ہے؟ 4 یار کی منع پہ ہے. یہ ایک ایت پیش کرو کہ حق 4 یار کا نعرہ لگانا جائز نہیں ہے. ایک ایت پیش کرو حق 4 یار درست نہیں ہے. ایک حدیث پیش کرو حق 4 یار درست نہیں ہے. ایک آیت پیش کرو جس میں سب یار حق نہ ہو. صحیح نہیں ہے. میں حضور کا فرمان دیتا ہوں، میں صحابہ کا فرمان دیتا ہوں، میں سارے صحابہ و تابعین سے لے کے اب تک اور تو اور جو آیت پیش کی ہے فرمان دیتا ہوں. آیت کا جواب آیت سے لاؤ. اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے مومن حق ہیں. آپ 4 کو صرف حق کیوں کہتے ہیں؟ سب کو حق کیوں نہیں کہتے؟ قرآن میں نہیں ہے کیا ہے؟ لیکن یہ میں نے آپ کی تقریروں میں سنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد گولڈوی ان کی بات سمجھ سکتے ہو؟ فتاوی میویہ سے دکھا دوں اگر، اور ان کی بات سے میرے منیر سے دکھا دوں تو سمجھ آ جائے گی. یہ تو ساری باتیں ہیں. میں آپ کو آیت کا جواب لاؤ. آیت کا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ سن لو آپ نے کیا کہا ہے. میری بات سنو. فرماتے تھے کہ آیت محمد رسول اللہ قرآن مجید کی قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں سب یار حق ہیں. اشداء علی الکفار، یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلفاء اربعہ علیہم الرضوان کی ترتیب خلافت کی طرف واضح دلیل ہے. 4 یاروں کا ذکر موجود ہے. اور آپ نے بڑی بات کی تھی، جامی صاحب سے رابطہ کیا تھا کہ یہ مناظرہ میرے گلے پڑ گیا ہے، کہیں اس سے جان چھڑا لی جائے. تو جامی صاحب تو آخر جامی صاحب ہی ہیں جی، وہ جامی صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے. آپ نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ آپ بھی آپ الفاظ واپس لیں. یہ بہت جو اللہ کو منظور ہے. پھر میں آپ کا بالکل جن کا تم نے ہاتھ پکڑا انہوں نے تمہارا ہاتھ توڑوا کے ادھر کر دیا. یہ آپ گئے ہیں گولڈے شریف فون کیا، یہ آپ کے دوست وہاں پہنچے ہیں، وہاں مناظرہ ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر وہاں ہونا چاہیے عبد القادر شاہ صاحب آئیں گے کہ نہیں؟ وہ تو نہیں آئے گا. مناظرہ کس سے ہوگا؟ موضوع کس کا؟ موضوع کس نے؟ کس موضوع پہ کس نے کیا؟ قرآن مجید کی آیت حق سب یار، حق سب یار کا توڑ لاؤ. حق سب یار، حق سب یار کا توڑ لاؤ. یار کا نعرہ اہل سنت کی علامت ہے. حق سب یار کا نعرہ اہل سنت کی علامت ہے. کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن مجید کی یہ دکھا دوں پھر مان جائیں گے. قرآن مجید کی آیت کا جواب لاؤ. کم از کم روڑے والے کی تو مان لو، روڑے والوں کی تو مان لو. قرآن کو تو پہلے مانو. پریشان ہو رہے ہیں دائیں بائیں کی، یہ حوالہ نہیں ہوگا. مانگے نا، ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے. یہ پھر بولے، یہ پھر بولے. نکالیں ان کو، یہ نکالیں ان کو، نکالیں ان کو. ایک آدمی بولتا جاتا ہے شاید کی پابندی کو نکالتے ہیں. ابھی 10 منٹ بولنا چاہیے، کیوں دخل دیتے ہو؟ یہ 10 منٹ کے بولنے کے بجائے بولتا ہی جا رہا ہے. نکل جاؤ، تم شرائط کی پابندی نہ کرو. آپ جو مرضی ہے وہ اسے نکالتے ہی جاؤ. اگر شاہ صاحب یہ بھی محمد جی کا خیال کریں، میں مفتی صاحب آپ نے بات کی تھی، میں نے آپ کا احترام کیا. شاہ صاحب کی گفتگو کریں، 10 منٹ کو کریں. یہ حوالہ لگا ہے نا. اب چوٹ لگی ہے نا جی. میں کہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ قرآن مجید خیانت کر رہے ہیں آپ. کتاب دیں گے آپ کو. میں آپ کو میں کہتا ہوں آیت کا جواب آیت سے دو نا. میں نے یہ پیش کیا ہے. اے مولوی صاحب، پڑے گا پتہ چل جائے گا. پتا تو لگتا نا بھیا، پتا تو لگتا میں کہتا ہوں آیت کا جواب آیت سے کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب یہ دیکھ لیں، نظر اگر آتا ہے لطمات یہ نصیر الدین شاہ صاحب کی ہے جی جی. دکھا دوں. اچھا آپ فیصلہ ہو گیا. میں عرض کروں، آپ نے گولڈے حاضری دی ہے.
मैं कहता हूँ, बोलने वालों को मानते हो। मैं कहता हूँ मेरे और आपके दरमियान मुनाजरा शुरू हुआ है, 10-10 मिनट में बोलना चाहिए था। मैंने आयत पेश की कि मैंने ये साबित किया है कि सब साहबा हक हैं और आपने उसके जवाब में सिर्फ शोर किया है। और इस वक्त बोलने वालों को भी छोड़ते हैं और वो भी आपको छोड़ चुके हैं, वो पहले भी छोड़े हुए हैं। आपने कोशिश की है कि शायद साथ दे कोई, लेकिन कैसे साथ दे सकते हैं? आपने जिन का बाजू पकड़ा होना क्या ना शादी असा आगे बढ़े आप बदनाम हो जेड़े दूजे ने घोड़े आए तो घोड़ा शरीफ है जेड़े दूजे ने ना जेड़े तुसी आदे हो कुछ कर्मशाह से पूरा कुछ फतने ने मैं आके ਤੁਹਾਡੇ को अपना जवाब कोई नहीं दिता कर्मशाह तो तुसा की देना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। असल मौजू से आके बातें मत करें। आप शराब की प्रॉपर्टी में ये बंदा पौधे को पापा शोर मचा रहा है, गुफ्तगू नहीं करने दे रहा। दुनिया देख रही है, मुनाजरा नहीं कर सकते, दुनिया देख रही है। 10 मिनट चुप हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। 10 मिनट चुप हो जाओ, 10 मिनट चुप हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। बोलिए, 10 मिनट जवाब आएगा तो क्या फायदा? नहीं मत करो मत करो नहीं बोल रहे वो बोल रहे नहीं बोल रहे आप ऐसे भी नहीं बोल रहे किधर बोल रहे हैं मूवी बना रहे हैं आप ऐसे भी नहीं आप मूवी बना रहे हैं क्या यहाँ तकरीर करने हैं शाह साहब से बात करें आप क्या करेंगे दरमियान में शाह साहब पर बात करें आपका फर्ज था। एक छोटी सी अर्ज सुनिए, मैं इंटरनेट ऑपरेट कर रहा हूँ, बार-बार दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि बंद कर दो। हाँ यही आने हैं ना, दोस्तों ने कहना है ना ये क्या हो गया है, क्या सब कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। आयत के जवाब में आपने कहानियां शुरू कर दी। इंटरनेट की आप मानते हैं, कुरान और इसकी मानते नहीं, आप क्यों खड़े हो गए? कुरान मजीद की आयत का जवाब कुरान की आयत से दिया। मुफ्ती साहब बूढ़े हो गए, बूढ़े वाले मसला नहीं है, आप बैठे हैं, बात नहीं कर सकते वैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इंटरनेट का जो मौजू है, इंटरनेट पर भी मौजू आपकी तरफ से भेजा गया है मुनाजरा का, वो अख्तियार है। अख्तियार नहीं है, आपने लिख के दिखा दिया। आप शाह साहब आप अख्तियार को मानते हैं? मैं कहता हूँ मौजू क्या है। मुझे रोक दो शाह साहब कोई नहीं करे आके नहीं कर रहा है कौन है सारी लेकर आओ, तुम अकेले क्यों आए हो? बाकी भी इंतजामिया लाओ, सारी नहीं सारी इंतजामिया लाओ, आप कौन होते हैं? ये शाह साहब आते हैं कहते हैं मुफ्ती साहब आपसे कुछ नहीं हो यहाँ के बंदे बात करें, बाहर का बंदे मुंतजिम वो बाहर ही रहे यार। इशारा क्यों नहीं करते बात मुझे जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਐ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਅਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਅਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਮਿੰਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। और ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। और तू तेरा कुछ कर रहा है नजर आ रहा है, तू मदारी है और तेरे बंदर की कमी है, जो कुछ होना चाहिए। और 10 मिनट गुफ्तगू शाह साहब की 10 मिनट गुफ्तगू सुनना, तू जवाब में आए। अपने मुफ्ती साहब आप किरदार अदा करें, आप क्या कर रहे हैं? आप रोके 10 मिनट गुफ्तगू कराए। शाह जी कौन बंदे बनाने वाली शो दी है दो मौजूद है, चोली हरकतें हो रही है ना, शरायत मुनाज़रा की कोई पाबंदी नहीं। एक बंदा लगातार बोल रहा खारजे मबस बोल रहा इंजी 10 मिनट शाह साहब की 10
10 मिनट आप गुफ्तगू सुन के जवाब लिया, मैं आपको मार दूंगा। शाह साहब की 10 मिनट गुफ्तगू सुने आप। ये जो आप शोर के जरिए से अपनी कमजोरी पर पर्दा डालें, शोर के जरिए से अपनी कमजोरी पर पर्दा डालें। मैंने कुरान मजीद की आयत पेश की है, उसका जवाब ये था, उसका रद्द कर, उसको तोड़ते। तुसा सारा आनी आनी पे तुसा ना बोलना, इसने जुबान मुंह नहीं बोल सकते जी हजरत। आप 10 मिनट शाह साहब की गुफ्तगू का जवाब दो, मैं आपको मान जाऊंगा। शोर इसलिए डालते हुए शाह साहब गुफ्तगू ना कर सके, तुम्हारी शोर न करो, शोर न करो, गुफ्तगू कराओ। आप शोर के जरिए से अपनी खिफत पर पर्दा डाल दें, शोर के जरिए से अपनी खिफत पर पर्दा डाल दें। कुरान पढ़ते हुए आप बोल रहे, शाह साहब कुरान पढ़ रहे थे, आपने पहले आराम का इंतजाम किया। पागल मुनाजरा करने की पोजीशन में नहीं है, मुनाजरा करने की पोजीशन मुनाजरा करने की पोजीशन में आप है नहीं, मुनाजरा करने की पोजीशन में नहीं। अब आप मुनाजरा करने की पोजीशन में आप हरगिज़ नहीं है, इसलिए कि आप असल मौजू को मुनाजरा करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं है। नहीं सुन सकते। आप तो कल तक आप 4 यार के हक में दलाइल लेते थे शाह साहब। अब सुने ना, दलाइल सुने, शाह साहब के दलाइल सुने। आप खिलाने से नहीं एक मिनट इजाजत। शाह साहब ज्यादती ना करसो, तो बारू बंदे बुलाना निशोदी हरकत ना करसो। निशोदी हरकत करने इस तो बात नहीं कर सकते हो। बच्चा मनाजर नहीं है, ये वीडियो बनाने वास्ते इत्थे बैठ। मौलवी साहब मेरी गल सुनो, गल सुनो। एक सिर्फ गल अर्ज करसा, 10 मिनट आप गुफ्तगू करें, 10 मिनट आप गुफ्तगू करें, हम सुनेंगे। बाबू मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते जी। कर नहीं, आप नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते। आप बैठे, अदर साहब का, पीर साहब का साथ दे, बार बार बाहर न जाए। हम में से कोई बंदा बाहर नहीं जाता जी। मौलवी साहब अभी गुफ्तगू होती है, मौलाना 10 मिनट हजरत साहब पीर साहब गुफ्तगू करते हैं, मौलाना मेरी बात 10 मिनट हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद जलाली साहब गुफ्तगू करें। अब आप मेरी अर्ज तो सुने, मेरी अर्ज तो सुने, मेरी अर्ज तो सुने। इस बात पर आप आना चाहते हैं मुफ्ती साहब, आप मौजू बताइए क्या लिखा था। मुफ्ती साहब मैंने कहा था ये मौजू नहीं है, तय्यन नहीं है, मौजू का तय्यन कर लिया। आपने कहा था दस्तखत क्यों किए हैं, ये दस्तखत इसलिए किए हैं कि हमारा सामना हो जाए, इसलिए आपका लिखा हुआ मौजू आप नहीं बोल सकते बच्चे। लिखा नेट क्यों बंद हो गया जी? नेट ऑन करो जी, नेट ऑन करो भाई। मेरी बात नेट में बंद होने की जिम्मेदारी तो सब है, नहीं केस नेट चलाओ तो सब है। तुसा दी गल सुनने ते चुप कीता कि नहीं जी, और तुसी भी मेरी गल सुनने ते चुप करो। 10 मिनट 10 मिनट गुफ्तगू करें। जुबैर शाह साहब
آپ بھی گفتگو نہیں کریں گے, ہماری طرف سے بھی کوئی بندہ گفتگو نہیں کرے گا. 10-10 منٹ گفتگو ہو جائے. طریقے سے سن لیں ان کی, پھر ان کی سن لیں. ٹھیک ہے جی, میری بات پہ انہوں نے باتیں اور نہ کریں, آپ کریں گے تو لمبی ہو جائے گی بات. جی پیر صاحب آپ اپنا طریقہ جو ہے وہ شروع فرمائیں جس طرح آپ کرتے ہیں. مووی بنانے والا کیمرہ مین کوئی نہیں بول سکتا, یہ مناظرے کے معاون نہیں ہے, مناظرے والے بھی نہیں بول سکتے. اوے کاکا معاون ہمیں صلاح دے سکتا, لگام دے اپنی زبان میں. وہ 6 ہو گئے ہیں نا, ادھر بھی 6 ہو گئے, ادھر بھی 6 ہو گئے ہیں. ہم کوئی بات اخلاقی نہیں کریں گے, اخلاق کے دائرے میں گفتگو کریں گے. یہ علماء کی گفتگو ہے, دلائل سے ہوگی, لیکن دلائل کا طریقہ شاہ صاحب اپنائیں. آپ 10 دفعہ کھڑے ہو چکے ہیں زبیر احمد شاہ صاحب, جو کچھ انہوں نے کیا سے کھڑے نہیں ہوتے, ہمیں کھا دیتے. نہیں آپ مفتی صاحب گفتگو کراتے ہیں 10-10 منٹ, آپ 10-10 منٹ نیٹ چلاؤ جی, آپ صاحب انٹرنیٹ چلاؤ جی. میری بات نیٹ چلاتے ہیں, میں آپ سے بات میری بات پیر صاحب بات کریں, پیر صاحب بات کریں جی, پیر صاحب بات کریں. آپ کی باتیں میں نے سنی ہے نا جی, چپ تو کر, 1 منٹ چپ کرنے کا بھی تجربہ کر کے دیکھیں. وہ چمچہ شاہ صاحب سلسلہ ختم کریں. یہ بندہ کیوں بولتا ہے, مناظر ہے نہیں, میں بولتا ہے اجازت میں صدر مناظر نہ بچے, میں صدر مناظر نہ اتھا ہے, میں ویڈیو بنانا نہ آیا, میں کیمرہ مین نہ, میں مولوی ہوں اور مناظر صدر مناظر نہ اتھا ہے جی. تو میں اساں نسنے ہیں, بار بار تو آڑے بندے باہر جا آنے, اساں در کوئی آگے بیٹھے ہیں, ایمان نال تو آڑے کار آگے بیٹھے ہیں. اور میری کل اساں تو سانے کار آنے کے بیٹھے ہیں, اساں تو آڑے کار آنے بیٹھے ہیں. تو بچے کیمرہ مین تو شور کرو, بات ہی نہیں سنتے, بات ہی نہیں سنتے. سنو بات, سنو میری دکھانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ شکست ہو رہی ہے. میری بات انہاں جڑی اس ویڈیو والے نوں تسی چپ کرا لو, اے بولسی تے باہر جلسی تے تسی بولسو تے باہر جاؤ, جے تسی بولسو اے بولسو وہ بولسو باہر جاؤ. نہیں اے تسی گل نہیں کر سکتے, وہ بندے گل کر سکتے. مولانا ویڈیو بناؤ, صاف کر. اور چپ نہیں کرنی, گل سننی نہیں بس. ایک آیت تو سن لے, مولانا عبد القادر صاحب یہ دیکھا آپ نے, میں اگر آپ اجازت ہے تو بات کروں. جی کریں, جی کریں. نمبر اول بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت یہ گزارش کی تھی کہ دلائل سے بات کی جائے, لیکن اس پر آپ نے کہا کہ خاک دلائل دیئے, خدا کا خوف کر, خدا کا خوف کرو مولوی صاحب, خدا کا خوف کرو مولوی صاحب. میں نے 10 منٹ گفتگو کی, چپ تو کرو. ایک بات مجھے کرنا, مفتی صاحب سفید گل ہے کہ یہ سارے علماء پہلا جڑا فکر ہے وہ 4 تیسرے فکرے مہربانی کرو تے اے دلائل تے گل کرو. جس وقت تسی بولو گے انہوں نے کوئی کم نہیں, اے بولنا اگر بغیر موضوع تو ہیں
پھر بول سکتے ہیں نہیں وہ بات ایک ہی ہویا اپنی تقریر ایک ہی ہویا سب سے مبنی کریں گے پھر ٹائم ضائع کریں گے نہیں آپ نے یہ ٹائم نہیں ضائع بڑے بہت ساٹھ دیتے ہیں دوسرے کے پیریڈ میں بولنا نہیں ہے. بات کرنا ہے بات کرنی یہ بات ایک آپ سے میں نے کہا ہو گئی گالی آج تیری ہوگی گالی شور جانتے ہیں پورا عرش اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ کو کیا تکلیف ہے مجھ پہ اعتراض کریں شاہ صاحب آپ میرے مدے مقابل نہیں ہیں شاہ صاحب کو بات کرنے دیں مدے مقابل ہونے کی جہاں تک پیسے پتہ نہیں آپ بھی ہیں کہ نہیں. آپ فقط مداری آپ کے پاس ایک بندہ ہونا چاہیے. میں ٹپی جانے نے شاہ صاحب نے بولنے نہیں دینے ایک ہی مسئلہ ہے. شاہ صاحب قرآن کی آیت پڑھ کچھ بول جائے قرآن سنن کی آداب نہیں. 10 منٹ میں نے بولنا تھا. انہوں نے میری گفتگو میں شور بچایا کہ نہیں بچایا؟ ان کو کوئی حق نہیں تھا, کوئی حق نہیں تھا ان کو. آپ کے 10 منٹ کے پیریڈ میں جواب مصعب قرآن سے دے رہے ہیں, جواب مصعب قرآن سے دے رہے ہیں. شاہ صاحب زبیر احمد شاہ صاحب آپ نے بنایا تو ہم نے بنایا. آپ 10 منٹ خاموش ہو جائیں ہم خاموش رہیں گے. آپ 10 منٹ خاموش ہو جائیں شاہ صاحب دلائل دیں گے. اور آپ کی گفتگو میں ہم نہیں بولیں گے, آپ کی گفتگو میں نہیں بولیں گے. آپ کون ہوتے ہیں اگر بولے میں نے شرائط مناظرہ طے کی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس لیے کہ 10 منٹ کے بعد ہماری حالت آ جائے گی. پاگل تو تو ہے جو دلائل نہیں سنتا. قرآن پڑھنے ہوئے جو بولے پاگل وہ ہوتا ہے. کون مارتے ہیں جائیں کر کے برکت نہیں لگے گا تمہیں شاہ صاحب بولن سے جنہیں گل کرنی آپ 10 منٹ جس کو مرضی شروع کریں. آپ نہیں بول سکتے یار تیری اصلی کوئی بھی خاموش نہیں رہے. آپ نہیں بول سکتے نا, آپ کیمرہ مین سارے چپ کر جو 10 منٹ بولیں. جب یہ بولے آپ نہ بولیں. پہلے بول لیں پھر حضرت صاحب بول رہے ہیں, 10 منٹ گفتگو ہو جائے. ٹھیک ہے کون جی کرا لو چلو شاہ نہیں چار گلا سن چلو 10 منٹ نہیں ہونی وہ آپ کو چلو شاہ نہیں آئے نے 2-4 گلا سن. مولوی صاحب گپے مارنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اصل موضوع مولوی صاحب ادھر میری طرف دیکھیں, آپ کے دستخط اس پر موجود ہیں کہ نہیں؟ نعرہ تحقیق کا جواب مصعب, نعرہ تحقیق کا جواب مصعب میں پہ پیچھے کرتا ہوں. سب کچھ نہ بولو, یعنی بولتا ہے چپ رہا تو شاہ صاحب نے دلائل شروع کرو. عنوان کا تعین کر لیں گے. نہیں یہ بالکل نہیں لکھا ہوا, دیکھیں اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. اس پر آگے بات چلے گی. اس پر نہیں اس پر لکھا ہوا کیا ہے؟ اس پر دلیل نہیں ہے شاہ صاحب کے پاس. یار کا توڑ نہیں ہے. بات یہ حق سب یار کا توڑ نہیں ہے, حق سب یار کا توڑ بھی نہیں ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں 10 منٹ آپ شاہ صاحب آپ دلائل شروع فرمائیں. آپ دلیل تو نہیں دیں گے بطور تبرک قرآن کی 2-4 آیتیں سنا دیں ہم سن. شاہ صاحب دلائل دیں, آپ شروع فرمائیں. دلیل نہیں دے سکتے آپ, بدلی بوس لگے ہوئے ہیں آپ, انگلی سینہ لگے ہوئے ہیں. آپ پتہ چل رہا ہے دلائل شروع. آپ سنیں شاہ صاحب کی سن لیں. 10 منٹ آپ بولے کہ ہم نہیں شور کریں گے, لیکن 10 منٹ کے پیریڈ کے اندر بولنا ہے. جو کسی کے دلائل ہیں وہ دے. 10 منٹ صرف دے رہے ہیں بطور برکت کے. لوگ کیا کہتے ہیں 10 منٹ جب تک مناظرہ چلے گا, جب تک مناظرہ چلے گا مولوی صاحب, جب تک مناظرہ چلے گا 10 منٹ آپ کے 10 منٹ شاہ صاحب ہو بیٹھا. تو چپ کر, تو مولوی سے ٹپڑا ہوں ہے اس لیے کہ تم بولتے جاؤ قرآن پڑھتے ہوئے بولتے جاؤ. بس ٹھیک ہے, مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ترجمہ عرض ہے, وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور جنہوں نے مدد دی
وہی لوگ سارے کے سارے سچے مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اس آیت سے میں نے استدلال کیا ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو، ہجرت کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو اور مدد کرنے والوں کو اور جگہ دینے والوں سبھی کو کہا کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ ہماری وجہ استدلال کیا ہے جی؟ فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ، یہ بیضاوی کی عبارت ہے، فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَتِهِ لَهُ، جس وقت کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو، وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور اس پر حکم کیا مرتب ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ یہ اوصاف سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ہیں، اس لیے یہاں یہ معنی نکلے گا کہ یہ سب یار کے معنی اس کے نکلتے ہیں، کیونکہ المومنون میں الف لام استغراقی ہے۔ الف لام استغراقی کا مفہوم یہ ہوگا، یہ جن کا سب کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اب ہم اس سے استشہاد کریں گے کہ یہ اس کی منطقی صورت یہ بنتی ہے کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے، یہ حد اوسط ہے۔ اور اس کی حد اکبر کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ حد اوسط اس کا نام ہے جس جماعت کے متعلق اقرار یا انکار کیا جائے، اور حد اکبر اس کا نام ہے جو اقرار یا انکار کیا جائے۔ اب اس کا کس جماعت کے متعلق اقرار کیا گیا ہے؟ ان اوصاف رکھنے والوں کے، یہ سب صحابہ کے اوصاف ہیں۔ اب اس کی منطقی صورت یہ بنے گی کہ سارے صحابہ وہ ان اوصاف میں سے کسی نہ کسی صفت کے مالک ہیں، لہذا ان کے بارے میں ہوگا یہ سارے حق ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حق سب یار۔ اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، خلفائے راشدین، ہم نے کہا ہے، یہ بات بار بار میں نے اپنی تقریروں میں بھی کہی ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ ان سب صحابہ کے بارے میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان باقیوں کو بیچ میں سے نکالتے کیوں ہو؟ آگے دوسرے 10 منٹ کے پیریڈ میں واضح کروں گا حق سب یار، حق چار یار کہنے میں وہ نکلتے کس طرح ہیں، اس پر میرے شواہد آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس وقت میں چاہوں گا کہ جس طرح میں نے منطقیانہ صورت کے ذریعے سے اور دلائل ناویہ کے ذریعے سے سارے صحابہ کو حق ثابت کیا ہے، اس میری دلیل کو توڑیں اور ان کے اندر خلفائے راشدین کی وجہ تخصیص بیان کرے۔ ہمارے تمام اصولیوں کا قاعدہ ہے، آپ 10 منٹ انتظار کریں، پھر جو کریں کہ کسی عموم کتاب اللہ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے یا حدیث متواتر چاہیے یا حدیث مشہور چاہیے۔ حدیث مشہور وہ ہوگی جو صحابہ کے دور میں تو اس کو شہرت نہیں ملی، لیکن تابعین اور اتباع تابعین کے زمانے میں اس کو اتنی شہرت مل گئی جو کہ تواتر کے لیے ضروری تھی۔ اب اس حدیث میں اتنی قوت ہے کہ اس کے ذریعے سے عموم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، عموم کتاب اللہ میں خصوصیت کی جا سکتی ہے۔ یہاں ان صحابہ کرام میں جن کے اندر ایمان لانا، ہجرت کرنا، رائے مولا میں جہاد کرنا اور جگہ دینا اور مدد کرنا، ان کے اندر 4 خلفائے راشدین کی کوئی خصوصیت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے ان کو ان میں سے خاص کرنا یہ قابل اعتراض ہے۔ جب سب صحابہ کی قرآن مجید نے توثیق کیا کہ سارے صحابہ حق ہیں، تو پھر ان میں سے خاص طور پر 4 کو حق کہنا، اس سے باقیوں کا اخراج لازم آتا ہے۔ یہ آئندہ والے پیریڈ میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ اس وقت غالباً 10 منٹ پورے ہو چکے ہیں جی، 5 منٹ پھر چلیے جی۔ اب اس کے حق چار یار کے جو دلائل ہیں اس میں حق پہلے آیا ہے، یار بعد میں آیا ہے۔ جس طرح تقدیم و ما محل المؤخر یفید الحصر، کہ کسی چیز کا مقام جو بعد میں ہو اس کو پہلے لایا جائے، حصر لازم آتا ہے۔ یہ حق جو ہے یہ خبر ہے 4 یار کی، اس کو پہلے لایا گیا، لہذا اس کا حصر لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اردو ادب میں بھی یہ بات، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے بحر الفصاحہ، یہ نجم الغنی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، چپ کر کے سنیں۔ آپ نے خود پہلے آپ نے ختم کر دیا تھا، تقریر ختم ہو گئی تھی آپ کی۔ نہیں کہتے 5 منٹ نہیں، 5 منٹ ابھی باقی، اس پر میں اور مزید دلائل دوں گا۔ ہاں پھر شور کیوں؟ یہ بات قاعدے کے مطابق غلط ہے، ان کو باز کریں، جب تک میں بولتا ہوں اس وقت نہ بولے۔ نجم الغنی صاحب نے اپنی کتاب بحر الفصاحہ کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت کسی چیز کو جو مؤخر ہونے والی ہے اس کو مقدم لایا جائے، فائدہ حصر کا دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حق پہلے کہنے سے یہ معنی نکلے کہ صرف یہی 4 حق ہیں۔ حصر کا یہ کیا معنی ہوتا ہے؟ حصر اپنے معصور کے اندر جس چیز کو ثابت کرتا ہے، غیر کے لیے اس کی نفی کرتا ہے۔ اس کا مطلب حق کو ان 4 کے لیے ثابت کرنے سے
जिस वक्त ये हक को पहले कहा तो बाकियों को निकाला गया है, इनका हसर लाजिम आया है। इनको हक कहने में कोई मजायका नहीं, बाकियों को निकालने में मजायका है। हमारा इख्तलाफ इसमें नहीं है कि इनको हक क्यों कहते हो, हम हक यकीनन इनको मानते हैं, जब सबको मानते हैं तो इनके मानने में हमें क्या इतराज है, लेकिन हमको इनके बाकियों के निकालने पर इतराज है। और उसके बाद ये चार जो है ये सूरे कजिया है, और सूरे कजिया वज़ा वाज़िब, मेरी तरफ ध्यान करें मौलाना, ये आपके सुनने की जवाब तलब बातें हैं। अब मुनाजरा चलेगा तो पता बिल्कुल आप बात सुने, अभी आपको अपने ख्याल के मुताबिक जो निकल नहीं सकते वो अपने पास रखें। चार जो है ये अदद है, ये सूरे कजिया है। सूरे कजिया वज़ा वाज़े में वज़ा इसलिए किया गया है कि जिसके अव्वल में आए जो चीज़ उसके अंदर मासूर करे, गैर से उसकी नफी करे। ये चार का अदद इस्तेमाल करके हक चार यार कह के वो जितनी मिसालें आपने दी हैं उसमें हक का लफ्ज़ पहले नहीं आया हुआ, और इस तरह अदद भी नहीं आया जो हसर वाक़या करे। इस जगह हक का लफ्ज़ पहले भी आया हुआ है और चार का लफ्ज़ बतौर कजिया सूरे कजिया के वाक़या भी हुआ है। इसलिए लाजिम आएगा कि सिर्फ यही चार हक हैं, बाकी कोई हक नहीं है। इससे हम ये साबित करते हैं कि हक सब यार कहना बमुकाबला हक चार यार के ये ज़्यादा सही है। इससे अगली बात जो है वो इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे। जो दूसरा पीरियड आ रहा है उसके अंदर ये बात तौज़ी तलवी के अंदर मौजूद है। ये कहने वाला कह सकता है ये चार जो है ये सूरे कजिया हम नहीं मानते, इसलिए कि अदद है ये कुल या बाज तो सूरे कजिया होता है, अदद नहीं होते। हमदुल्ला का सफ़ा नंबर 37 है, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि आदाद भी सूरे कजिया होते हैं। तो सूरे कजिया जो आ जाए, ये बात लंबी इबारत है जी, 2 मिनट रहते हो सुन लें। तो ये सूरे कजिया है, सूरे कजिया जो आ जाए तो सूर वज़ा वाज़े में वज़ा इसी के लिए की गई है कि जिसके अव्वल में आए वो मासूर हो, इसीलिए उसको मुसव्वरा भी कहते हैं, मासूरा भी कहते हैं। मासूरा क्यों कहते हैं कि उस बात का हसर लाजिम आता है। जब कहेंगे कि हक चार यार तो फिर कवायद के मुताबिक हक का हसर उन चार के अंदर लाजिम आता है कि सिर्फ यही हक हैं, बाकी कोई हक नहीं। हमें इससे इख्तिलाफ है, हम कहते हैं सब ज़्यादा हक हैं, सिर्फ यही चार हक नहीं है। ये सब हक वालों के सरदार हैं, हमें इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन बाकियों को निकालने से इख्तिलाफ है। जो आदमी हक चार यार का नारा लगाता है गैर शऊरी तौर पर, उसको ये नहीं पता कि मैंने यार जो मौखर था इसको मुकद्दम कर दिया, इससे भी हसर लाजिम आता है। चार का अदद इसमें आया, उससे भी हसर लाजिम आता है। तो हसर लाजिम आने के क्या माना? कैद के बारे में तौज़ी तलवी ने यह बात लिखी है, उसके अंदर यह बात मौजूद है कि कैद अपने मुक़य्यद के अंदर जिस चीज़ को साबित करती है गैर से उसकी नफ़ी करती है। ये चार के अंदर हक को आपने बंद किया है तो इस चार के अंदर तो हक साबित करेगा और इनके मासिवा में उसकी नफ़ी करेगा। ये काबिल इतराज़ बात है। हमें सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह तआला अजमईन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ टाइम खत्म हो गया, हाँ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बरहक, खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, खलीफा स्वाम, खलीफा चारम, मेरी वज़ाहत उसके अंदर मौजूद है कि हक सब यार का हो ताकि बाकी सहाबाए किराम, जिसमें अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु का नाम लिया है, मैंने हज़रत अमर बिन अस का नाम लिया है। ये लीजिए, अब इसका जवाब लाइए। ये 10 मिनट वक्त पूरा किया, लेकिन आयत का जवाब आयत से, जिस तरह कवायद की जुबान से मैंने बात को साबित किया है, आपने कवायद की जुबान से उसको तोड़ना। आप खामोशी करें, आपका टाइम खत्म हो गया है। इतने ही आपसे सुनना था, चलो लोगों को पता चल जाए कि कुछ ना कुछ शाह साहब ने तबर्रुकन जो है ना वो बात की है यहाँ पर। मेरी गुजारिश ये है आपसे कि मौजू था हक चार यार। हक चार यार हमारा दावा था, आपने इस दावे को तोड़ना था। आपने इस दावे को तोड़ने की कौन सी दलील पेश की है? कोई दलील पेश नहीं की। और जो बातें आपने की हैं, ये अभी आपकी वीडियो अगर इसको रिवर्स किया जाए तो आपने कहा चार को हक कहने में कोई मुज़ायका नहीं, बाकी को निकालने में मुज़ायका हो गया। चार को हक कहने में कोई मुज़ायका नहीं है, तो यही तो झगड़ा था। ये वीडियो लगाओ पीछे से, मैंने कहा बात पूरी कर, बात कैसे चले? फैसला हो गया, फिर ऐसे लगे रहे। जब फैसला हो गया बाकी को निकालने पर इख्तिलाफ है। इस तरह नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप फिर चार को हक कहने में कोई मुज़ायका नहीं। एक बार ये कहा चार भी सही हैं और सब यार ज्यादा सही हैं। सही तो है ना चार यार भी,
یہی تھا جو ان کے مطابق بھی اگر ماننے کے جواب مصاب کیا ہے، آپ نے کہا وہ بھی مصاب ہے، یہ بھی مصاب ہے، تو آپ پھر اس پر کیا کہہ سکتے ہیں آگے؟ آپ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ آپ سے ہو گیا ہے اس کے خلاف. تو جواب مصاب یہ بات بھی اگر مان لیں آپ کی کہ اس پر تو حق چار یار کی منع پر آپ سے کوئی دلیل 2 گھنٹوں میں نہیں دی گئی. اب یہ آپ کو مفتی صاحب نے اپنی طرف سے اپنی جیب سے انہوں نے کہا کہ کچھ ٹائم میں اپنے طور پہ بھی دینا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ 4 کو حق کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، 4 یار بھی صحیح اور سب یار زیادہ صحیح ہے. 4 یار سب حق والوں کے سردار ہیں، یہ بھی آپ نے تسلیم کر لیا. تو 3 جملے اس موضوع کے مطابق جس پر پوری زندگی آپ نے گزاری ہے کہ خبردار حق چار یار کا نعرہ نہیں لگانا، مناظرے کے میدان میں اتر کر آپ کی زبان سے یہ ثابت ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق چار یار واقعی حق ہے، اس میں وہ شک نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زبان سے یہ ساری باتیں نکل آئی ہیں. آئیے ذرا آپ بڑے منطق میں ادھر ادھر گھوم کر آپ نے شاہ صاحب بات کی ہے، کہاں کی دلیل ہے؟ اس نے کہا مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. بات کیا ہے اور آپ ثابت کیا کر رہے ہیں؟ دلیل منع پہ دینا چاہتے ہیں. آؤ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر بارگاہ رسول ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم و حکمت کے جام نوش کرنے والے ہیں، یہ ان سے روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معاہو، اس کی جو تفسیر ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکرن. اب آپ کے مطابق اگر کہا جائے تو اور صحابہ سارے حضور کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ابو بکر ہی ساتھ ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں جو سارے صحابہ میں بڑھ کے جن کو ہر لحاظ سے میت حاصل ہے وہ ابو بکر ہیں، حالانکہ پیچھے باقاعدہ طور پہ اللہ زینہ موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرمانا اشداء علی الکفار عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، اور رحماء بینہم عثمان. کیا دوسرے رحم دل نہیں ہیں؟ صحابہ سارے رحم دل ہیں، صحابہ سارے عظمت والے ہیں. پھر تراہم رکعا سجدا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت مولا علی شیر خدا ہی صرف سجدہ کرتے ہیں، صرف یہی رکوع کرتے ہیں؟ نہیں، عبداللہ بن عباس یہ بتانا چاہتے ہیں سارے صوم و صلات کے پابند ہیں، سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ پرہیزگار ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن رکعا سجدا جس طرح پچھلے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں آپ نے یہ بیان کیا، اسی طرح خلیفہ الرسول خلیفہ رابع کے بارے میں بھی یہ بیان کیا. اور یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ باقی سارے صحابہ میں یہ شان پائی جاتی ہے، نمازی سارے ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، لیکن جو ان 4 یاروں کا مقام ہے یہ امتیازی حیثیت کا امتیازی حیثیت اس کو حاصل ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت وہ بولی بولتے ہیں جو تفسیر یا تو رسول اللہ نے خود فرمائی ہے یا رسول اللہ کے صحابہ کی زبان سے سامنے آئی ہے. اور یہ آیات بہت ساری ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ شفا شریف سے حضور کا اپنا فرمان پیش کر رہا ہوں. یہ شفا ہے، یہ کتاب مجھے دے. جو شفا ہے جو پڑھیں تو دلوں کا مرض دور ہوتا ہے. یہ شفا ہے جس کے اندر واقعی ہی شفا ہے. حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ان اللہ اختار اصحابی الی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی منہم 4. حضور پر نور شافع یوم النشور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، مختار فرمایا ہے جہانوں پر، سارے جہانوں پر سوائے انبیاء و رسول کے. آقا علیہ السلام نے یہ فرما وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ 4. ان سارے صحابہ میں سے میرے لیے اللہ نے میرے لیے 4 صحابہ کا انتخاب کیا ہے. حضور فرماتے ہیں سارے میرے ہیں، اور ان میں سے 4 کو اللہ نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے. 4 کا لفظ موجود ہے، شاہ صاحب میری طرف توجہ کریں، 4 کا لفظ موجود ہے. حضور فرما رہے ہیں، آپ اعتراض کر رہے ہیں حضور پہ یا صحابہ پہ یا رب پہ؟ حضور تو فرما رہے ہیں یہ انتخاب اللہ نے فرمایا ہے. سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ شان والے، لیکن جن کے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ سارے صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے 4 کو پھر چن لیا. یہ 4 ہے. 4 جانتے ہیں اس کی دلالت قطعی ہے
अरबा ना 4.5 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 5.5 हो सकता है, ना 3.5 हो सकता है, अरबा 4 है। मैं आपसे पूछूंगा आपको इतराज किस बात पे है? हक 4 यार कहने से आपको मसला क्या बन जाता है? हक 4 यार जो जुमला है, मेरी तरफ तवज्जो करो, इसमें आप हक नहीं मानते या 4 पे इतराज है, यार पे इतराज है, किस पे इतराज है? मजमूए पे इतराज है? ये तो आका सलाम की अपनी जुबान का बयान है। अगर शादी तुम्हारा ध्यान है तो ये रसूलुल्लाह का फरमान है। क्या फरमाया? जहां तक भी बात होती तो बात तो वाज़ेह हो गई। आगे फरमाया अबा बकर व उमरा व उस्माना व अलीयन, फरमाया वो 4 हैं कौन? वही 4 हैं जो आज भी हमारी आंखों की ठंडक हैं। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, जिनके सहाबा हैं वो तखसीस फरमा रहे हैं, तो आपको इस 15वीं सदी में क्या एतराज हो सकता है? आपका तो ताल्लुक बड़ा दूर का होता है। जब 4 यार कहने से आपको इस पे एतराज होता है तो लोग कहते हैं शाह साहब तो पता नहीं राफजी हो गए, क्या मसला है कि 3 को मानते नहीं है क्योंकि नारा हैदरी तो लगाते हैं। अब 4 पे और मसला क्या है? नारा हैदरी तो आप मारते हैं तो उसको नारा हैदरी लगाने में कोई आपको मतलब एतराज भी नहीं होता। तो जब 4 आ जाए तो फिर क्यों एतराज होता है? जब एक की शान बयान करे तो दूसरों का रद्द नहीं होता, जब 4 की बयान करे तो दूसरों का रद्द हो जाता है। ये तुम्हारी मंतिक है तो इसे ले जाओ किसी कुएं में डाल दो। हम ऐसी मंतिक को नहीं समझते, हम रसूलुल्लाह के फरमान को समझते हैं। और आओ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस पर 20 दलाइल मौजूद है, अरबा का लफ्ज मौजूद है, हुजूर का फरमान मौजूद है। हुजूर के 4 यार अरबा का लफ्ज जब हुजूर बोलते हैं तो कौन होता है जिससे हमें रोक सकता है? लिहाजा ये मैंने आपके सामने दलील पेश की, आप मान चुके हैं। आप पहले वीडियो निकाल के मुझे इसका जवाब दें जो आपने कहा कि 4 को हक कहने में कोई मुज़ाका नहीं। अभी तो आपने 2 घंटे लगाए इसी बात में और अब कहते हैं कोई मुज़ाका नहीं। अब यही अपने हाथ से जो वीडियो में आ गया है अगर आप लिख दें तो इसमें भी कोई मुज़ाका नहीं। जब बोलने में आपने कह दिया तो लिखने में भी कोई मुज़ाका नहीं आ जाती है। शाह साहब सब्र करें, ये किताबें आपने आज तक नहीं देखी हुई, ये दलाइल आप तक आज तक नहीं देखे हुए, ये चुटकियां लगाने से काम नहीं चलेगा। ये आप कह चुके हैं, वीडियो में मान चुके हैं, जो हमारा दावा है वो आपकी जुबान से भी वो ही निकल रहा है। और आपको आपकी बड़ी तमन्ना थी तो आपको 10 मिनट हमने दिए ताकि मखलूके खुदा देखे कि शाह साहब क्या करते हैं, कहां से लेते हैं, किधर से पकड़ते हैं, कहां से उठाते हैं, किधर गिराते हैं और क्या साबित करते हैं। और उसके अंदर फिर जो होना था होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जी बड़ा भी आदमी जोर लगाए तो वो 3 बार आपने इकरार कर लिया, लिहाजा हमारा जो दावा है वो साबित हो गया और मना पर आपकी दलील कोई नहीं है। दलील अगर आप देते तो दलील दे नहीं सके, लेकिन बावजूद दलील देने के आपसे इकरार हो गया है, तो लिहाजा हमसे इस बात का इजहार हो गया है कि आज भी नारा साबित हक 4 यार हो गया है। किताब मुझे दे, कौन सी? जो पहले पेश की है, उसका नाम लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, कौन सी किताब है? नहीं शिफा शरीफ बात की जो हदीस आई है आप मशवरा देंगे? नहीं आपको मुझे किताब देने जो पहले तफसीर जिसमें हजरत वल्लज़ीना माअहू की तफसीर बताई है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की है, यह इकरमा का कौल है। कौन सा इकरमा? कहाँ लिखा हुआ है? बताओ, दिखाओ जी, दिखाओ कहाँ इकरमा लिखा हुआ है। शादी गल नहीं करनी, ये रूहुल इकरमा लिखे है, ये रूहुल दसो इकरमा केड़ा है? रूहुल मानी के अंदर लिखा हुआ है। रूहुल मानी नहीं, मैं किताब के लिए पेश कर रहा हूँ। किताब बताओ ना, मैं देखता हूँ। ये किताब देखो। नहीं मुझे मेरे हाथ में दो ना, मैं देखूं। हाथ में दो ही, दे दो हाथ में। अच्छा, और दूसरी जो हदीस पेश की है वो हदीस तो देख लें। वो दूसरी हदीस जो पेश की, वो जो हदीस पेश वो हदीस जो पेश किया वो मौजू है, वो मौजू है, वो मौजू है, वो ही तुम्हारा मौजू है। तो अब तो मौजू ही लगेगा शादी। आप जो मैंने आयत पेश किया उसका तोड़ आपके पास नहीं हो सका। आयत का तोड़ क्या होता है? उसका आयत तो अपनी जगह पे सच्ची, आप उसको क्या कह सकते हैं? आप ये मान गए कि इस हक 4 यार के नारे में कोई मुज़ाका नहीं, साबित करने आए थे क्या और हो गया क्या? अब देखो अच्छी तरह इसको मुताला करो।
یہ نہیں بالکل گزری ہوئی ہے. سنیں اس کا رد سنیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا راوی اکرمہ ہے اس مقام پر. روح المانی آپ لکھ کے دیں میں روح سنیں پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے اور والذین معہ جو ہے یہ سیغہ جی یہ اکرمہ کا قول ہے. یہ آپ کیوں بول میری گفتگو میں آپ یہ مفتی صاحب یہ جو آپ کی یہ عادت آپ کیا لگتے ہیں بولنے کے جب میں بول رہا ہوں میں کیوں بول رہا ہوں. آپ میرے پیریڈ میں کیوں بول رہے ہیں. بالکل میری بات اب چپ کیوں نہیں کرتے. یہ مفتی صاحب یہ بات یہ ٹائم ان کو میرے حق میں دینا ہوگا. یہ میرا وقت انہوں نے ضائع کیا. بات سنیں شور کیوں کریں. چپ کریں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاق و سباق میں جو صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے یہ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ یہ آپ کا جو کنز الایمان ہے استغفر اللہ آپ کا نہیں ہے. آپ بتاؤ وہی بات ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں حق چار یار تم کہتے سب کی نفیات ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. میرا بھی ہے پر آپ شور آپ نے پہلے بھی تقریروں میں کہا ہے. آپ کیا اللہ حضرت آپ میری گفتگو میں بولتے کیوں ہیں. یہ دیکھیں بھائی میری گفتگو میں یہ بولتے ہیں میری گفتگو آپ کیوں میرے پیریڈ میں آپ بولتے کیوں میرے پیریڈ میں آپ بولتے کیوں. آپ نے مجھ سے پوچھا نا تو میرا آپ سے حق بنتا ہے پوچھنا. میں کہتا ہوں آپ کا مطلب ہے آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کو پوچھے نہیں. میرے پیریڈ میں مجھے مناظرے کا ڈھنگ نہ سکھائیں. میرے پیریڈ میں آپ کو بولنے کا کوئی آپ کا قرآن آپ کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں اس کا جواب دے. قرآن نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قرآن نہیں. میں کنز الایمان میں نے کنز الایمان کہا بندہ خدا اور میں نے آپ کا قرآن نہیں کہا. میں نے کہا آپ کا کنز الایمان خدا کا خوف کر یا اور توبہ کرو اور میاں توبہ. میں کہتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے ان کا وہ آپ بریلوی کہلاتے ہیں. آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کا کنز الایمان آپ کا نہیں ہے. میری پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے میری آیت کا کوئی جواب نہیں. مجھے اس کا جواب دے. آپ کا کنز الایمان نہیں ہے. یقیناً ہے لیکن میں نے کہا آپ نے کہا آپ کا کنز الایمان تو باوجود اس کے کہ کنز الایمان ہمارا بنا کے تو آپ کا بھی ہے. مولوی صاحب اور چپ کرو یار چپ کرو. اب میرے پیریڈ میں کیوں بول. یہ آپ کی ہار ہے یہ آپ کی شکست ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں آپ بولتے شکست ہے آپ کی. مولانا اس شخص کی شکست کا اعلان کریں. ان کے وقت میں نہیں بولے. مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں. صحیح بول رہے ہیں تو شاہ صاحب ٹکٹ بولیں گے. شاہ صاحب غلط چلیں گے تو روکیں گے. غلط نہیں چلے. جس وقت آپ کا پیریڈ آئے گا تو مفتی صاحب آپ اپنے مولوی صاحب شعر و شاعری سے بات نہیں بنے گی. آپ شعر و شاعری نہ کریں دلائل سے بات کریں. مولوی صاحب اس کی شکست کا اعلان کریں. یہ آدمی یہ ہر بات میں خلل اندازی. مولوی صاحب یہ میری ہنسنے سے
फिर क्यों मसला बनता है शाह जी? शोर आपके पीरियड में मैं बोला हूँ, यही और की निशानी है। इनकी पीरियड में मैं नहीं बोला, मेरे पीरियड में ये शोर बेचारे। आप सही बोले ना, फिर आप ऐसी बातें करते हैं तो बोलना पड़ता है। मुझे मेरे पीरियड में आपने क्यों कहा कमजोरी मान? मेरे पीरियड में आप हरगिज़ नहीं बोलेंगे। आप बोलूंगा, मैं रोकूंगा जहाँ पे हरगिज़ नहीं रोक सकते। ये मुनाज़रे मौलाना मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, कुरान मजीद की आम पर मुखस्सिस ये नहीं ला सके, उलाए का हुम बस कर जवाब नहीं दे सके। ये ऐसे न करें। शाह साहब के औकात में अंदर छोड़े। शाह साहब तो खुश हो गए, इतने नाम चाबी लग गई, चाबी। शाह जी, शाह साहब, आप मुखस्सिस लाओ। सुनो, आगे और कल चला ही नहीं सकते हो, आम का मुखस्सिस लाओ। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शोर करोगे तो कुछ भी बन जाएगा। ये आपकी शिकस्त की अलामत है। असल का जवाब जिक्र नहीं किया, मुनाजिर है, गुफ्तगू कर रहे हैं। छोड़ और तू पागल तू दस तुसी क्यों बंद रही हो? तुसी क्यों बंद रही हो? तुसी क्यों बंद रही हो? मेरे पीरियड क्यों बोलते हो? मेरे पीरियड क्यों बोलते हो? मेरे पीरियड क्यों बोलते हो? बिल्कुल ये मौलाना, ये ड्रामा साजी नहीं है, ये दलाइल की बात है। ये जो आपने चार पर ये जो दलाइल पेश किए हैं, तुसी चुप नहीं कर सकते हो। ये चुप ना करना ये शिकस्त की अलामत है। मैं 100 मरतबा कहूँ, लेकिन आप मेरी गुफ्तगू में नहीं बोले। ये देखो, ये मौली साहब, ये मुफ्ती इस मौजू पे नफी दी कोई दलील नहीं। मैं कहता हूँ कोई नहीं, तेरा भी कुछ नहीं। मेरी बात मौली साहब, ये आपकी हार की निशानी, आपकी हार की निशानी, आपकी हार की निशानी है, आपकी हार की निशानी है। आप उनको बंद करें, शाह साहब गुफ्तगू करें, आप उनको बंद कर दें। शाह साहब की गुफ्तगू इनको कौन बंद करेगा? नहीं बोल सकते। अगर वो शाह साहब की गुफ्तगू में बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। नहीं, ये क्यों बोला? ये सारे मुनाज़िर बेटा तू देखा लग रहा है। ये कौन है टेके? ए मुआवे नहीं, इतना तुसी टेके। ओए मुआवे नहीं, तू किथों आ गया? मुनाज़िर तू इतने मुनाज़िर कर रहा है। और चुप कर जरा, बस कर, बस कर, बस कर। तुसी नसना में पता नसना है। मेरी जुत्ती नसी जमिया ही ने तू, और जमिया ही ने मेरे नाल गुफ्तगू करने जोगा। वो असल दे चार कायदे मोतबर किताबों को उन्होंने दा जवाब दे। असल दे कायदे दा जवाब दे। वो तेरी हालत दीदनी है। चार यार तू ना तौबा कर दे। आज नु चार यार नाल खास क्यों कीता? जवाब दे। ओए बढ़िया ओनु फड़, जवाब दे यार, ओनु फड़। मौली साहब, ये जो क्या खाक जारी रखें? ये आदमी हारा हुआ है और अपनी हार को छुपाने के लिए ये मुख्तलिफ शोर करता है। बिल्कुल दलाइल इसके पास नहीं है, दलाइल पास नहीं है। मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब, आपने ऐड किया भाई, नहीं बोलेगा, ये क्यों बोल रहे हैं? इसको बंद करें। पहले आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब मैं बोलता हूँ, ये बोलता है तो मैं इसको बंद करें। इब्न अब्बास का कौल कुरान के मुफ्ती साहब के दार अदा कर पाबंदी कुरान दो तक कुरान असल कबूल है, उसी शराइत की पाबंदी नहीं कर रहे। इनके शोर करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बंद नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ मेरे पीरियड में चुप कर गया। बस बस बस, अगर आप बोलेंगे फिर सारी जहान बोलेगा।
क्या गल है वो क्या गल है क्या गल है तेरी पीर साहब ने किताब मंगी है इन्होंने दी है फिर गुफ्तगू आम का मुखस्सिस लाना है गुफ्तगू आगे आम का मुखस्सिस लाना है को मुल मोमिन हक का आम है उसका मुखस्सिस लाई तेरी जानत पता चल रही है तेरी जानत पता चल रही है तेरी जानत का है ओ तू जवाबी तकरीर की है तू जवाबी तकरीर की है और पागल तू है सारी दुनिया मेरी निशान बोल रहे हो नहीं यार एक ही बंदा 24 तो तौबा करने आ रहा मैं 24 तो तौबा कर ली देख ये ड्रामा है कि ये मुनाजरा है चार यारों में इसको बंद करते हो गैरों से नफी करते हो क्या ये सुन्नत का मजहब नहीं है रवाफिज का मजहब है तुम राफजी हो ये हुजूर की हदीस है लफ्जी हो गल होती नहीं चार यारों में असर के कायदे बयान किए जवाब दो असर के कायदों का जवाब दो वो असर के कायदों का जवाब दो इधर पागल को बंद करो मैं कहता हूँ पागल वो है जो चुप नहीं रह सकता असर के कायदे में जो चुप नहीं आगे चल ही नहीं सकता आप उनको पाबंद करें उनको पाबंद करें वो शाह साहब की गुफ्तगू में ना बोले हम नहीं बोलेंगे मैं बोलूं या शाह साहब बोले आपको मेरे पीरियड में आपको बोलने की इजाजत नहीं है मेरे पीरियड में आपको बोलने की इजाजत नहीं है पीर साहब ने किताब मांगी इन्होंने दी तो आपस में तकरार शुरू हुआ तो वो तो बात हम 100 बार करेंगे आप कौन होते हैं दरबार में बोलने आप कौन होते हैं जब मेरे पीरियड में बोलने वाले आप कौन होते हैं क्यों बोलते हैं दुनिया देख रही है असर के कायदे का जवाब नहीं आया कुरान के आम का मुखस्सिस नहीं आया सारी दुनिया देख रही है और तुम्हारी जालत का पता चल रहा है लाओ आम का मुखस्सिस लाओ कौन बंद करता है बालों बंद है उनके साथ पता चले मोबाइल बंद करने की इजाजत है तो फिर सामने में पता चलेगा नेट बंद है मैसेज आ रहा है बाहर जाके पता करो वो उन्हें गलत मैसेज पहले मैसेज आया आवाज बंद हुई उसके बाद मैसेज आया वीडियो भी बंद बंद हुई पूरा करने चले कुरान दिया है तमखसला हो आगे चलो नहीं कुरान के आम का दसो करना है तेरी बोलती मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायदे बयान फरमा वीडियो बना रहे हैं मौली साहब मेरे पीरियड में आप बोलते क्यों है नहीं मैं बोलूं हर किसी ने बोले आपके पीरियड में मैं नहीं बोलता आपके पीरियड में एक मिनट आपने उसकी पाबंदी नहीं की आप मैं कहता हूं कि मेरी तकरीर के दौरान आप नहीं बोलेंगे आप अपनी शिकस्त को शोर के जरिए से पर्दा डालना चाहते ये बात आप सबकी बात पहले बात ये थी जो कवायद मैंने उसके लिए बिल्कुल जो कायदा तकयीद बयान किया उसका तोड़ बयान करना चाहिए था जो नहीं जो मैंने कवायद हसर जो बयान किए हैं उसका रद्द करना चाहिए था उससे बाकी साहबा निकल जाते उसका चाह तो आप इकरार कर चुके हो तुझा खोदा क्या है आप 4 यार का भी सही है सब यार का ज्यादा सही है ते ज्यादा हो सही है तो सही है मान ले ना ऐसे ही मान ले ना आप सुनने दे नहीं आप चुप कर मैं आपको बता रहा हूँ शोर न कर बस कर लाख लानत है तेरे इस जुमले पर 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 खुदा बस कर रहा है इस पागल को देखो पागल को तो सुने ना असर के कायदों का जवाब लाओ तोज़ी तनवीर वो कायदा खाक का कायदा तोज़ी तनवीर खाक है तुम बुजुर्गों का गुस्ताख है तोज़ी तनवीर खाक है इसे छोड़ो एक बार तू शाह साहब की गुफ्तगू में मत बोल शाह साहब की गुफ्तगू में तू नहीं बोल आपकी जुर्रत क्या बोले आप कोई इल्मी जुर्रत नहीं रखते आप सिर्फ शोर बचा सकते हैं मैदान पर कुरान के आम का मुखस्सिस ला कुरान के आम का मुखस्सिस ला हमारे दिल ज़बान बंद हो गई तेरी शाह साहब कौड़ी नहीं है पता एक कोटी बना रहे हैं एक कोटी बना रहे हैं मदारी है पीर साहब की 10 मिनट गुफ्तगू करन तो फिर लेकिन वो चुप कर सन तो मैं कर सा उनके खिलाफ वर्जी को आप सुन
गलत बात करते हो, गलत बात करते हो, गलत बात करते हो। तुम मेरे कायदों का जवाब लो। खुदा का खौफ करो, मुझे बस कर रहा है, क्यों चलता है? हम कहते हैं असर लाजिम आता है, असर लाजिम आता है, असर का जवाब आप नहीं ला सके। देख रही है अगर पाबंदी कराओ तो आसान 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 का कोई साथ ले जाओ, बात नहीं हो रही है फिर से। आपको पता चल गया है, फैसला हो गया है, फैसला हो गया कि असर के कायदों का जवाब नहीं दे सके। ये जो हदीस बयान किया ये मौजू है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस मौजू है। और चार बाकियों को साबित कर दिया, आप 4 यार सही है। हसर गलत है, हसर गलत है, हसर का जवाब लाओ। ये 4 ही हक है, इस पर इख्तलाफ है, इख्तलाफ बाकियों को निकालने पर है, इनको दाखिल करने पर नहीं है। और खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर। मेरे असर पर गुफ्तगू हुई है, बदतमीज खौफ खुदा कर शोर के जरिए से। हक सब यार पर है, तुम 4 के अंदर बंद करते हो, 4 के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। हक सब यार के शिकस्त जब सामने आती है फिर हमारी हो गई, असर का जवाब नहीं लाए। बन रही है, ये वीडियो भी बन रही है, देख रही है तुम्हारी। बेशक बने, आपका झूठ सारे जान पर वाज़े है पता चल गया है कि हसर का कायदा बयान किया है कि मान गया तो कहना क्या बयान करेंगे। ये इसी का माना है कि ये झूठ कहते हो कि सारे सहाबा हक है, सारे सहाबा हक हैं, उनको सिर्फ 4 को हक कहना ये खता है, इससे बाज आना पड़ेगा आपको। आपने क्यों कहा कि अख्तियार को माना सही है? नहीं, क्यों कहा? 4 का हक, 4 का हक होना सही होने में कोई शक नहीं। हक शक और बात सुन लिया, शोर बचा, शोर हरगिज़ मैंने नहीं माना, मैं नहीं, ये बात आप अपनी हार को छुपा रहे हैं शोर के जरिए से। मैं वो ये हदीस मौजू है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस ये सुनियों की किताब, कई किताबें आता है, ये इमाम नसाई ने कहा, इमाम नसाई लाफी है, इमाम नसाई लाफी है, इमाम नसाई ने मौजू कहा है, ये हदीस मौजू है। वो साबन कुछ डाल देते हो, और तेरे अंदर की नासबियत सामने आ रही ये ये हदीस मौजू है, ये हदीस मौजू है, ये 4 वाली हदीस मौजू है। पागल आप है, पागल आप है, पागल आप है। ये हदीस मौजू है, ये मीज़ानुल एतदाल है मेरे किताब, मेरे हाथ में जिल्द नंबर 2 है, हदीस मौजू है जो आपने पेश की है, वो ये है वक़द क़ामत अल-क़ियामत अब्दुल्लाह इब्न सालिह बिहाज़िल ख़बर अल्लज़ी क़ाला हदसना नाफ़ि बिन यज़ीद अन ज़ुहरा बिन माबद अन सईद बिन मुसय्यब अन जाबिर। ये मुनाज़रा हो रहा है, मुरीदां नहीं पढ़ रहे हैं, इबारत फिर पढ़ो, लो ऐ निकाल नहीं होंगी, ये हदीस मौजू है, मैं अभी पढ़ता हूँ। इन अल्लाह इख्तार अस्हाबी अलल आलमीन से नबीयीन। वीडियो बनाना चवल या किथों बाजड़े तुसी भेजे, क्यों चवल तुसायो क्यों बोल रहे है? तुसी बोलो, मैं बोल रहा है, क्यों बोल? और मेरे बोलने क्यों बोल रहे हैं तुम? मैं बोला मेरे इबारत को रोकना, क्यों इबारत पढ़ रहे हो? इबारत खोल के देखो, मेरी इबारत नहीं गलत रोक सकते हो बे मौलवी साहब, ये दोनों गलत फहमी है।
बड़ा सोना इबारत पता लगता है प्या इन अल्लाह इख्तारा अस्हाबी अलल आलमीन सवन नबिय्यीन वल मुरसलीन वख्तारा मिन अस्हाबिही अरबात अबा बकर व उमर व उस्मान व अली व जअलहुम खैर अस्हाबी व फी अस्हाबी कुल काल अन्नसाई हदस अबू सालिम पे हदीस इन अल्लाह इख्तारा अस्हाबी व हुवा मौजू ओ अल्लाह दे बंदे बाबे इफ्तियाल ओ इख्तारा ना पसंद के पढ़ नहीं इख्तारा केड़ा सीगा है इख्तारा नहीं इख्तारा सीगा केड़ा है ओ इख्तारा सीगा केड़ा है मौलवी साहब आप इबारत पढ़ रहे हैं मजनून है ओ तू इमाम नसाई नु और हाफिया खड़ा है इमाम नसाई नु और पागला और ये तकरीर में क्यों गुफ्तगू करता है ये मदारी लाए हैं मदारी ये चोर होना चाहिए इसके साथ बंदर होना चाहिए ये गुफ्तगू तो शायद आप करने पर कुरान के आप के मुखस्सिस लाओ असर के कायदे लाए शाह साहब ने कुरान क्यों बोल रहा है अरे और शिकायत है इनका जवाब नहीं आया ये हदीस मौजू है इबारत मैं पढ़ दिया आप इबारत शाह साहब पढ़ेंगे तरकीब वो करेगा तरकीब कराएंगे इबारत तब पढ़ेंगे जब वो तरकीब करेगा और मेरे पीरियड में बोलते कि वो आपके पीरियड में बोला हूं मैं मेरे पीरियड में क्यों बोलते हैं आप मेरे पीरियड में नहीं बोल सकते हर किस नहीं बोल सकते यह मुनाजरे का दस्तूर नहीं है आप बोले तो मैं सुनूं मैं बोलूं तो आप सुनो आप अपने पीरियड में उसका जवाब दें छुपा अपनी शिकस्त नू किसे ये हदीस जो है ये हदीस जो है मौजू है जिसको आप इमाम नसाई ने इसको मौजू कहा है ये अच्छा इसके बाद वो इबारत मुझसे नहीं पढ़ी जाए खुदा का खौफ कर मैं तेरे जैसे आदमी को पढ़ाने वाला आदमी हूँ तरतीब कराओ इबारत पढ़ो उसके बाद तरतीब कराओ ओ खुदा का खौफ ओ खुदा का खौफ मेरे सामने बच्चों की हंसी तालियां खूब बजा तस्वीक लिन्निसा तस्वीक लिन्निसा उन्होंने भी बकवास किया है उन्होंने भी बकवास किया है उन्होंने भी बकवास किया है पढ़ो इसको तू भी बकवास किया है तू क्यों मार रहा है और तू भी बकवास किया है तू भी पागल है पूरे जमाने में बकवास करते हो गया हमने लाहौर से पकाया इन कुत्तों को हाँ ये नहीं हमारे बराबर इस्लाम का जवाब कोई नहीं है शिकस्त हो गई को राजी का इन्होंने मुनाजरा नहीं करना दुनिया देख रही है पूछेगी असल के किसी कायदे का जवाब और कुरान के और तेरी जानत दुनिया को पता चल गई तू औखा नजर आसना तू चुप कर
अच्छा जी और चुप करो तुसी उन चुप करो मैं कराना चुप और चुप करो मैं चुप करा मैं चुप कराने वाला शोर करना थोड़ा मिशन शोर के बगैर थोड़ा पर्दा ही कोई बाहरों बंदा नहीं आना चाहिए ना इस जाति बाहरों बंदा नहीं आना एक दिन गुफ्तगू भी दूसरा ना बोल और तुसी बोलते कि उन मुनाजरे की पाबंदी नहीं करते पीर साहब तुसी 2 मिनट चुप कर जाओ ना शाह साहब तुसी 2 मिनट चुप कर जाओ जुबैर अहमद शाह साहब बोलो ना जुबैर शाह साहब तुसी गल नहीं करनी ना जुबैर शाह साहब जुबैर शाह साहब सारे मुसलमानों वास्ते है तुसी पाबंदी नहीं करनी असा गुफ्तगू नहीं चलन देनी जिस तरह ये भौंक रहा इसी तरह समझी शोर मचान दे वीडियो तो मुंह से करो यार और तू कुत्ता आख्या मैनू और कुत्ता आख्या मैनू और तू आईने विच अपना मुंह देख रहा है कुत्तिया शीशे से अपना मुंह देख रहा है कुत्तिया जुबैर अहमद शाह साहब जवाब कोई नहीं कुरान दे आमदा मुफस्सिर कोई नहीं इंजी चल रहा हदीस मौजू ले आया जवाब हदीस मौजू ले आया ये मुनाजिर है सारे जवाब आ जाएंगे बैठे 10 मिनट गुफ्तगू करेंगे आप सही इस बंदे ने चुप नहीं करना मेरा कोई कहना नहीं हो रहा कि सैयद को जो सियासी को कहे जो सियासी की गुस्ताखी करे आपसे बोलना नहीं जा सकता आप कौन होते हैं आप कौन होते हैं बोलते उनके बारे में बकवास करते हैं 4 साहबा के बारे में कोई बकवास नहीं करता हम साहबा का एहतराम करते हैं इमाम नसाई को राफजी तुमने कहा शाह साहब को करवा दिए सारे को बात बोली जा रही कुरान के आम के मुखस्सस नहीं ला सके असर के कायदों का जवाब नहीं ला सके जाइलो 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 शाह साहब जानदा प्रोग्राम ना करोगे शोर नहीं जाना नहीं होना मैं मेरा जूता जाएगा वीडियो मार यार कितने बंदे चले गए वीडियो मारो क्यों यार शाह साहब आप पहले क्या तकलीफ है आपको आप बार बार उठ सकते फिर मुझे उठना पड़ता है नमाज में अगर रसूल पे दुरूद पढ़े तुम बड़े आगे आ जाओ रसूल दा बड़ा इथे तूने बोल सका तू कैमरा मैन साहब आप बात करन दियो हजरत साहब उन्होंने चुप कौन करासी ए कोई नहीं चुप कर दे ए मौलवी साहब हमेशा गलत करोगे ओ मौलवी साहब गलत करोगे मेरे को बच्चों दी हसीन दा बंदा तू मेरी बात को जी जरा बात सुने इश्तियाक बैठ जाओ तू मुनाज़रे कैमरा मैन है वादे की पाबंदी सारे मुसलमानों वादे की पाबंदी दुकान पर जाकर मुनाज़रे इत्थे गल करसन शाह जी मैं 10 बस मुफ्ती साहब अर्ज करना शाह साहब ने कुछ मौलाना ना बोलना कदे ना बोलना मैं ना बोलना बैठो जी मैं कदे ना बोलना अगर मौलाना ना बोलना शाह साहब गुजारिश ये है कि ये उलमा मेरी एक मिनट बात नहीं मेरी बात ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ मैं अर्ज करना चाहता हूँ मौलाना साहब बोलते हैं यार तू अपनी दुकान से बोल सकते वो क्यों नहीं बोल सकते कौन हो एक मिनट वो असल में ना एक मिनट मेरी अरे इश्तियाक नहीं देखो इश्तियाक चुप रहो देखो एक मिनट की हो रहा है गुजारिश ये है कि मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसूल मुनाजरा ये नहीं है एक मुनाजर गुफ्तगू करता है वो दलाइल सही दे गलत दे दौरान मुनाजरा दूसरे को बोलने का हक नहीं है जब उसकी बारी आए तो उस पर बाकायदा तौर पर वो तनकीद करे आपकी भी समझ ना आए आपको कहा ये बात आप हर आदमी के साथ या बेअदबी का रुख नादिर से आप तो कहते हैं कुफर जो आया वो आदम सल्लल्लाहु के अंदर से आया है आप ऐसे कर लेते हैं चुप कर चुप कर वो ऐसे कर लेते हैं कोई इबारत निकालते हैं या आप भी पढ़े मैं भी पढ़ता हूँ सही कौन पढ़ता ये जो बात है जो आपने कहा है कि जो भी कुफर आया है थोड़ा मैंने ये नहीं कहा मैंने ना मैंने ये नहीं कहा मैंने कहा शोर न कर शोर अपनी शिकस्त को आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद चाहे वो बाद में काफिर या मुसलमान हुई पुश्ते आदम से आई है चुप कर चुप कर इबारत पढ़नी हो तो मेरे साथ अभी पढ़ते हैं किताब निकालते मैं पढ़ता हूँ आप भी पता चल जाएगा खराब होगा कितने साल आपको गुफ्तगू करना आता ही नहीं
फिर शर्त किया कि जब ये गुफ्तगू फरमाए वो जो भी बोले उनको बोलने का हक नहीं है, वो गुफ्तगू फरमाए जो मर्जी कहें, यहाँ से शाह साहब को बोलने का हक नहीं है। जब इनकी बारी आए तो उसकी गुफ्तगू का जवाब दें। शोर करके बैठे आपको शोर की इजाजत, उसके बाद फिर इनके दलाल का जवाब दें। शोर की इजाजत नहीं होगी। और मौली साहब हाँ जी, अगर मुनाजरा कराना चाहते हो तो शख्स को शोर से बंद करो। ये बिल्कुल आप 100 मरतबा जमानत दे चुके हैं, फिर भी ये शोर करते, फिर भी ये शोर करते। हमने ये सारी पार्टी देखी है यहाँ इंग्लैंड में भी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तो भी नजर। आप तो मेरी बच्चों की उम्र के नहीं है जी, मैं ये याद कर रहा हूँ आप मेरी बच्चों की उम्र के नहीं है। आप बुजुर्ग आपका मुंह भी पूरा बना नहीं है, आप आराम से बैठे। कोई बात नहीं, कर रहे हो इस तरह कैमरामैन बच्चे ये सब बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते, आप भी बोल सकते हैं, आप 6 बजे बोले ना, आप 6 बजे बोले ना, नहीं निगरानी मुनाजरा भी चले गए आपके हालात में, शराइत मुनाजरा की कोई पाबंदी नहीं, जो चाहे जो कह रहे हैं आप, आपके हालत देखें किस चीज की आप पाबंदी कर रहे हैं। चुप कर रहे हैं। देखें इनके जो सवालात हैं उनका जवाब दें, जो इन्होंने दलाइल पेश किया उनका जवाब पेश करें। असल के कायदों का जवाब लें, कुरान की आम के मुखस्सिस का जवाब लें, उसके बाद पूछ चलाएंगे। सरकार उनको आता ही नहीं है, कुरान की आम का उनको पता ही नहीं है हसर क्या होता है। अगर आता तो जवाब देते। कुरान के आम के मुखस्सिस का, कुरान के आम का मुखस्सिस और असल के कायदों का जवाब लाएंगे, गुफ्तगू आगे चलेगी। शाह साहब बोल रहे हैं, शाह साहब ने दलाइल नहीं दिते, शाह साहब ने दलाइल दिते तो गुम हो गया, वो बोलना ही नहीं होता। अगर इसके बाद अगर मेरी तकरीर के दौरान ये बोले तो फिर इबारत। और इधर मौली साहब इधर मेरी तरफ मुंह कर और जना बन मैं मर्दे मैदान बन के आके शाह साहब के साथ बैठ के ना भी तरकीब करो 170 की, नहीं तरकीब कर सकोगे, नहीं तरकीब कर सकोगे। मेरे सामने तरकीब करने की पोजीशन में तुम्हें से कोई भी नहीं है, गलतफहमी में मुब्तला हो। वो काम कर रहा सी अलग सरोली लोकमील को लोडी ये हालत है, उसने किताब लिखी है और ये हालत है, वो छोड़ ये कायदा बयान हो रहा है अलग सरोली लोकमील को वो जाहिर आदमी अपने हाल पे इमाम नस्वी ने पहली सदी लिखा है, वो पैदा हुए तेरी किताब है मौजूद है। गलती हो सकती हज़रत इस्माइल ने मासूम लिखा है, गैर नबी ने मासूम कहता है। शोर कर ले, शोर कर ले। मौली साहब जवाब नहीं दे सके हो तो बात क्लियर हो गई है। सुबह क़यामत तक जवाब नहीं ला सकोगे असर के कायदों का, असर के कायदों का सुबह क़यामत तक जवाब नहीं ला सकोगे। आपके पास कवायद की तैयारी नहीं है, आपका इल्म ही नहीं है उस बारे में जो असर के कायदे में। अगर असर के कायदों का जवाब लाएंगे हम आगे चलेंगे। आपने अपनी शिकस्त को शोर के पर्दे में छुपाना चाहे, नहीं छुपा सकते। जो लोग देख लेंगे वीडियो, बिल्कुल ठीक। आप 10 मिनट गुफ्तगू करें, आप असर के कायदों का जवाब दें, शाह साहब तक गुफ्तगू शुरू करें। नहीं कोई नहीं जवाब दिया है, कोई जवाब नहीं आया है। असर के कायदों का जवाब दे, आपने शाह साहब ने इरशाद फरमाया उनका जवाब दे, गुफ्तगू तब आगे चलेगी असर के कायदों का जवाब होगा। जी चुप ही रहना है कि नहीं? चुप तब रहूं जो मुझे समझ आए, अगर इबारत की समझ ना आए मैं नहीं कह सकता। इबारत तो आपको आती नहीं तो आप समझेंगे क्या? असल बात यह है इसलिए कि आपको पता ही नहीं है। मेरी बात इन्होंने इफ्तारा, मेरी बात सुनो, शाह साहब ने इबारत पढ़ी, मेरी बात सुने, शाह साहब ने इबारत पढ़ी, इफ्तारा कहा, आपने उसके अंदर ऑब्जेक्शन किया, इसलिए आपको ये पता नहीं कि इफ्तारा बात कौन सा बिल्कुल ठीक। मेरी उस सलूम दिशा से वापस कर दे, सलूम दिशा से वापस कर दे। हाँ जी, उत्थे बंगाली मुलाकात करांगे। करसा ये बात है गल करसा मिल साहब मिल साहब मौलाना साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ आप बोली अपनी ते चुप कर
आप खामोशी से बात सुने। सुनना नहीं पिया आप पूरा बढ़िया दिसना नहीं पता शाह साहब भी पढ़ते ने तो सुनना नहीं पिया मेरे दौरान गुफ्तगू क्यों आप गुफ्तगू करते हैं? आप हर किस नहीं कर सकते, हर किस नहीं कर सकते, क्यों करते? मैं ना करूं आपसे गुफ्तगू, मेरे पीरियड में नहीं कर सकते। जो मेरे गुफ्तगू के दौरान आपको कोई गुफ्तगू करने का हक नहीं है। आप क्यों करते? कायदे के खिलाफ है। कायदे बड़े आपको आते हैं, सारे कायदे खोल लिए आज। कोई दलील है तो कटो, वो असल के साथ कायदे दिए हैं। तौसीक खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। बहरुल फसाखत से दिया है, हम दुनिया से दिया है। एक किताब का जवाब दो, एक किताब का मरते मैदान बनो। हाँ सारा एक बार ये समझ लगी कि साहब को मानते रोको भी ना, रोको ना साहब यार, इससे तो रोका नहीं जा सकता। जी नहीं आप बोले ना, वो कह रहे हैं बात ये है नहीं, पहली बात खामोश रहेंगे तो बात होगी। फिर बोल रहा है, ये हालत है इसकी, दुनिया देख रही है, तेरी हालत काबिले देखनी है। शाह साहब की गुफ्तगू इसलिए भी सुन रहे हो कि तुम्हें जवाब नहीं आता, जवाब नहीं आता। एक तकरीर शाह साहब ने किया, तुम जवाब नहीं दे सके एक तकरीर का। अपने बंदों को सोच रहा है, आप अगर कोई बात करनी है क्यों बोलते हैं? वादा किया दुनिया सारी बैठी हुई है, आप चुप करें, सुने, वो फिर बोले, चुप करें और सुने। वो देखो फिर बोल रहे हैं। मैं आपको चुप करा रहा हूँ। ये है कि कुफर तलाश करते करते मैं आपको चुप करा रहा हूँ। हजरत की शान है जी, मैं आपको चुप करा रहा हूँ। और हजरत आदम से मुलाकात कर रहा है जी। ये शोर ही लोगों को सिखाते हैं। आपका जो अंदाजे गुफ्तगू है निहायत बचगाना है। आप अपनी शिकस्त को, मैं बता सकता हूँ आपका कैसा है। चलो छोड़ो, ये कोई भी मुनसिफ जब सुनेगा तो ये कभी नहीं कहेगा आप खुदा परस्ती से बात ठीक ही है, बिल्कुल कहेगा ये। 10 मिनट आपको कोई भी सुनेगा तो वही कहेगा। हंसे, ये ड्रामा नहीं है, ये मुनाजरा है। ड्रामा बना दिया ना आपने। अखलाकी तौर पर गिरावट इतनी है कि इतनी बदे के गिरावट में मौलवी में कभी नहीं देखी। और मौलवी है ही नहीं है, ये किधर मौलवी है? बंद कर लो, बंद कर लो। 10 मिनट लगातार शोर कर रहा है कि शाह साहब गुफ्तगू ना करें, लगातार शोर। अपने मुनाज़िर को तो बोल लेने दे। शाह जी बोलो जी, पीर साहब चलो अपने आदर पे पागला ही गला करता। चुप नहीं करेंगे आप। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। सारी दुनिया देख रही है। करो, कोई करनी है दे, कोई पीछे रांझी कर लो, क्या नहीं कर रही है। खुदा का खौफ कर। मौलवी साहब मेरी एक बात का जवाब नहीं ला सके आप। जवाब दे, करो शुरू। कुरान के आम के मुखस्सिस का जो कुरान के आम का मुखस्सिस नहीं ला सके, असर के 4 कायदों का जवाब नहीं ला सके, इनके जिम्मा उधार है, ईमानदारी से बताओ, ला सके जवाब उनका? मछली बना रहा है, इन्होंने जो बनाया चौक तू बंदा फड़ के ले आए, इसमें कोई पता ही नहीं है। आप पागल है क्या? निशानी झूठे बयान शाह साहब मुझे बयान देता कि इतनी तारीख मुनाजरा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, हुन फंस गया। अनवर शाह की लगती जिन्हें जिरम तो खबर दी है, शेर मारना पे बेटे यार। अनवर शाह की लगती, अनवर शाह ने खबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने अर्ज किया था कि वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाओ, ये सुलह हुदैबिया के बारे में है। जो लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन। उस वक्त ये ख्वाब सरकार ने जो देखा था उसको अल्लाह ताला ने सच्चा कर दिखाया। 1400 आदमी आपके साथ था। लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम, अब वल्लज़ीना जमा का सीगा, वाहिद का सीगा नहीं, जमा के सीगे की वाहिद पर दलालत का कोई लुग़वी कायदा नहीं। और ये कौल इकरमा का है, और इकरमा मज़हबन खारजी है, और वो हज़रत हैदर करार को सुबह शाम 70 मरतबा तवर्रा भेजा करता था। इसको बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है, इसको तहजीब ने लिखा है, इसको जो है इकबाल फी अस्मा रिजाल ने लिखा, अला हाज़िल क़ियास मुतअद्दिद किताबों ने, इरशाद सारी शरह बुखारी ने लिखा है, फतहुल बारी शरह बुखारी ने लिखा है कि ये पक्का खारजी है। तदरीबुर रावी शरह तकरीब इकरमा, ये तदरीब रावी निकालो जी। जी साथ जो बात कर रहे हैं ना, तो किताबें चूंकि पढ़ी हुई हैं तो शाह साहब निकाल के देते, पेश करते जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। फिर पूछना नहीं पड़ेगा तो बात नहीं चलेगी। आप बस निकाल के दिखाते जाएंगे, ये लिखा हुआ।
کہتا ماتا اکرمۃ و کثیر عز فی یوم واحد ولم یشهد جنازۃ اکرمۃ کبیر احد وقال نوح بن حبیب ماتا اکرمہ و کثیر عز بعده في يوم واحد فقال الناس مات فقيه الناس وشاعر الناس فقال البخاري يعقوب بن سفيان عن علي بن مديني مات بالمدينة سنة 400 وزاد يعقوب عن علي فما حمله أحد أكثر له 4 وسمعت بعض المدنيين يقول اتفقت الجنازة وجنازة كثير عز بباب المسجد في يوم واحد فما قام إليها أحد من آل المسجد. اس کو خارجی سمجھ کے کسی شخص نے آل مدینہ میں سے جنازے میں شرکت نہیں کی. تدریب الراوی نکالے جی. یہ تدریب الراوی شرح تقریب النووی صفحہ 329. آئیں دیکھ لیں. کہتے والقول بخلق القرآن اکرمہ مولا ابن عباس. اکرمہ مولا ابن عباس اور الولید بن کثیر هؤلاء الحروریہ وهم الخوارج الذين انکروا على علی على التحکیم وتبرؤوا منهم ومن عثمان وزبیح. یعنی حضرت حیدر کرار کو بھی یہ تبرہ کرتا تھا, حضرت عثمان کو بھی تبرہ کرتا تھا. یہ تدریب الراوی شرح تقریب النووی کے اندر یہ بات موجود ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ 1400 آدمی تھا. جب واپس آیا تو واپس آنے سے پہلے انہوں نے سرکار سے بیعت کی, اور وہ بیعت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق اکیلے نہیں تھے. ہمیں یہی اختلاف ہے جو سب باب میں بات پائی جاتی ہے, آپ باقی کو معروم کر کے ایک کو اس کے ساتھ خاص کرتے ہیں. وجہ تخصیص آپ کے پاس نہیں ہے. والذین معه والذین جو ہے اس میں موصول ہے اور بعض ضرب مستقر اس کا صلہ ہے, اور صلہ موصول مرکب ناقص ہے, مرکب غیر تمام ہے, اس سے کوئی معنی پورا نہیں بنتے. الشداء اس کی خبر ہے, اور الشداء شدید کی جمع ہے, اور وہ جمع کثرت ہے, جمع قلت نہیں ہے. اس کا چار پر یہ صادق نہیں آتا, اس کا مصداق 9 سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور وہ 1400 صحابہ جو گزشتہ سال تھے آئندہ ان میں اضافہ ہوا 1500 گئے. اور قرآن مجید نے اس تعبیر کو بتایا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. اس میں تو قرآن مجید نے بتایا, اللہ نے وہ خواب سچا کر دکھایا. وہ 1500 آدمی اس میں اکٹھے داخل ہوئے. تو قرآن مجید ان 1500 کو کہے جو اس کے ساتھ ہیں وہ سخت ہیں, اور تم صرف حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ عنہ قدر کہو. اور یہ قول اکرمہ کا ہے. اکرمہ کے بارے میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ اس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ آگے کہا مثلاً فی التوراۃ و مثلاً فی الانجیل. انہیں اشراء مبشرہ کا بھی ذکر کیا. اس سے پھر حق 4 یار کا معنی نہیں بنتا, حق 10 یار کا معنی بنتا ہے. پھر یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے یہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث موضوع پر یہ میزان الاعتدال جلد 2 اور صفحہ 442 ہے. آپ اس کی عبارت آپ تسلی سے سنیں. وقت قامت القیامت عبداللہ ابن صالح بحضر القبر. جی ہاں نہیں سنے, لیکن اپنے پیریڈ میں بولے. اب صرف آپ الجھانے کے لیے کہتے ہیں. میں بچہ ہوتا تو میں سمجھتا میں نے غلط پڑھا. مجھے ان قواعد پر الحمدللہ مکمل عبور ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو رسمی طور پر مولوی بن گیا ہو. میں نے کتابیں یاد کی ہیں. حدثنا نافع ابن یزید عن زورہ بن معبد عن سعید بن المسیب عن جابر مرفوعا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار من اصحابی اربعة ابا بکر وعمر وعثمان وعلی فجعلهم خیر اصحابی وفی اصحابی کلهم خیر. آگے بتایا قال النسائی حدث ابو صالح بحدیث ان اللہ اختار اصحابی هو موضوع. یہ امام نسائی نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے. جو اس کو آپ مستدل بناتے ہیں 4 کے اثر کے لیے, وہ حدیث موضوع ہے, وہ قابل احتجاج نہیں ہے. اور یہ تہذیب الکمال کے اندر بھی یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ سعید بن المسیب نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے ان رسول اللہ قال ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین حدیث بطول ہی موضوع. یہ حدیث اول سے آخر تک میں اپنی لمبائی کے یہ ساری موضوع ہے. پڑھے حدیثیں وہ یاد ہیں جو قابل احتجاج نہیں ہیں, اور آیتیں وہ پیش کی ہیں. اب قواعد لغت کے اعتبار سے قواعد میری ہنسنا نہیں ہے, بات سننی ہے توجہ سے. آپ نے سننا ہے, بولنا نہیں ہے. جب تک میں بات نہیں, آپ نے بولنا نہیں ہے, سننا ہے.
आपने कवायद लुगत के मुताबिक कवायद लुगत के मुताबिक वल्लज़ीना माहू से सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पाक को मुराद लेना दुरुस्त नहीं है। और अशिद्दा वल कुफार से ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर का इतलाक जो है जमा किल्लत रा चार अस्तबनिया अफ़अलु अफ़अल फ़ेला अफ़ेला, ये 9 से ज्यादा पर इसका इतलाक आता है। अकेले इससे हज़रत उमर फारूक मुराद नहीं हो सकते। तो जब लुगत के कवायद भी इसकी हमायत न करें और सियाको सबाक भी इसकी हमायत न करें, वो 1500 आदमी दूसरे साल 1500 आदमी था जो उसमें जाकर के दाखिल हुआ, तो दाखिल होने वाले या सरकार का साथ देने वाले या काफरों पर सख्ती करने वाले उनकी तादाद 1400 या 1500 हो और आप सिर्फ उनसे 4 मुराद लें, हमें ये इख्तिलाफ है। उनको उनमें डालने में इख्तिलाफ नहीं है, आले हक होने में उनके इख्तिलाफ नहीं है, बाकियों को उनके हक से निकालने में इख्तिलाफ है। ये बात है। हक से निकालने में खत्म हो गई है। 3 मिनट बाकी बात करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हदीस जो है वो काबिल एहतिजाज नहीं है और जो आयत पेश की है उसका मजमून जो है ना कवायद लुगत के मुताबिक सही है और ना कवायद रवायत के मुताबिक। बंदा जो उसकी रवायत करने वाला है वो मजहबन खारजी है और खारजी की हदीस काबिल एहतिजाज नहीं है। क्यों कि वो जनाब हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को सुबह शाम तबर्रा भेजता है। तो कायदे के मुताबिक ज़ब्त व अदालत किसी की सेहत रवायत के लिए ज़रूरी है। तो जिस वक्त उस आदमी का अकीदा आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदल तबर्रा भेजने का होगा तो उसकी हदायत काबिल रवायत रह जाएगी, काबिल एहतिजाज रह जाएगी। हदीसें वो बयान करो कि जो आले बैत के मुनकरों ने रवायत की हैं और वो बातें मौजू हैं। शज़रात साहब है पास, शज़रात साहब के मतलब अंदर लिखा हुआ है कि ये जो इकरमा है इसको हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के साहबजादे ने टॉयलेट के सामने बांधा हुआ था और आते जाते उसको जूते मारा करते थे और ये कहते थे कि ये मेरे बाप के बारे में झूठ कहता है। तो जिसके घर वाले उसके झूठ के रावी हैं और जूते मारते हैं और तमाम ने लिखा है कि वो आदमी मजहबन खारजी है, उसकी रवायत जनाब हैदर करार के खिलाफ खुलफाए राशिदीन की सच्चाई के बारे में कैसे एडमिसिबल हो सकती है। हमें उनके बारे में फिर एक मरतबा सुन ले। उनके बारे में हक समझने का पूरा यकीन है। बाकियों को निकालने के बारे में जो कवायदे हसर बयान किया, मेरी तरफ ध्यान करके सुनो, जो कवायदे हसर बयान किया उनको तोड़ो। मेरा ये मुतालबा नहीं है कि उनको हक न कहो, मेरा मुतालबा यह है कि हक में बाकी को भी शामिल, हक के अंदर बाकियों को भी शामिल करो। हक सब यार कहो, हक सब यार कहो ताकि बाकी जो है उस सिफत मुश्तरका से वो खारिज ना हो। अब बाद में मैं कवायद बयान करूंगा कि जमातों को तकसीम करने का क्या तरीका है। उसमें तकसीम हो सकेगा जो एक के अंदर सिफत पाई जाए दूसरे में ना पाई जाए तो तकसीम होगी। जब आप इनको हक कहते हैं बाकी भी सारे हक हैं, तकसीम किस तरह होंगे ये बाद में कायदा में बयान करता हूँ। अगर आप ये आपने जो बात की है जी अब खत्म हो गई है, 10 मिनट पूरे हो गए हैं? कोई बात नहीं करें, अब बात करें। अब आपकी बात में हम नहीं बोलेंगे। आपको आपके लिए ये जरूरी होगा जो पहले मैंने असर के कायदे बयान किए हैं, असर के कायदे बयान किए उनको तोड़ेंगे। दूसरा ये जरा जाना था किसी जगह बर्दाश्त होगी थी, पुलिस सारी सिक्योरिटी जा रही है, फिर मसला ना हो। अगर मेहरबानी है आपकी 10 मिनट तक आप 10 मिनट से चलो ठीक है। फिर 20 मिनट देने पर बाद में 10 मिनट में मैं भी बोलूंगा। फिर 10 मिनट हमें भी मिलेंगे। चलो 10 मिनट कुछ रुको से फिर हम रिक्वेस्ट है आप जरूर हमारे दूसरे में अगर 5 मिनट आप बोले, आप यहीं 10 मिनट खड़े हो जाए, आप तशरीफ रखें यहीं पे 10 मिनट आप यहीं पे तशरीफ रखें ताकि वो 10 मिनट क्लोज हो जाए। आप तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बड़े अफसोस की बात है, शाह साहब ने किताब भी मंगवाई है लेकिन पता नहीं देखा कहाँ से है। इकरमा की बात कर रहे हैं, कहाँ से आप हमको माखज़ तो निकाल के इस रिवायत में इकरमा है और उस पर ये दिया है। किताब आपने मंगवाई है, उसकी सनद फिर देखी है और फिर आप चूंकि ये आप असर के कायदों का जवाब दें, असर के कायदों का जवाब दें, कुरान के आम का मुखस्सिस लाएं, असर के कायदों का जवाब दें। आगे नहीं चलेंगे, आप आगे नहीं चलेंगे। इससे
शाह साहब की गुफ्तगू तुसी बोल सकते हो आम दा मुखस्सस लाओ सारी दुनिया में पता चले और आए का हुमुल मोमिनून हक़्क़न ओ मौलवी का मुखस्सस है बोलन दो वो हजरत नहीं बोल सकता कुरान में आम दा मुखस्सिस लाएगा हजरत आम दा मुखस्सिस लाएगा शाह साहब ये आप तुम्हारे आप बुलाने बदे क्या कर रहे हो आप 10 मिनट बोले जो आप चाहे शाह साहब को टाइम दें अपनी मर्जी से और गुफ्तगू से बातें हो रही है वो जो उन्होंने दिया है उसमें वाली बात आप शायद आपने शाह साहब को 2 मिनट भी आप बात नहीं करने देते अपनी बार आपको बड़ी तकलीफ होती है ओ अहमदुल्लाह से कायदा आया हसन का कुतबी से कायदा आया हसन का बकरुल फसाखत से कायदा आया हसन का इसका जवाब नहीं ओके तू असर दे तुसी असर दे कायदे नु तोड़ो मैं चुप हो जाऊंगा असर दे कायदे नु तोड़ो असर दे कायदे नु असर दे कायदे नु तोड़ो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने चोखे हम धुले पड़े हैं फिर के आगे बेचा दूं हैं शाह साहब आप खामोश रहें बात अपनी हालत है वो यही करके टाइम पास करके उधर शाह साहब ने ये अखलाकी कायदे का जवाब दे ज्यादा अगर जल्दी क्यों करता है वो असर दे कायदे का जवाब नहीं आया हदीस मौजू पेश की है देखो हजरत पानी दिए वीडियो तो करो सामने यार पानी पीना कोई जुर्म नहीं मेरे ते कभी नहीं पानी और तेरी हालत है तेरी हालत है मरफूअन सहीहन जेडी मौजू कर रहे हो अन जाबिरिन मरफूअन सहीहन ए मरफू सही है इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि ए रिवायत जेडी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो बिल्कुल मरफू है साबित है चूंकि जिक्र आ गया 4 यारा का तेरे कौन बने तुसी किताब दो किताब दो बोलो ना किताब दिखाओ किताब दिखाओ और किताब दे दो वो किताब दे दो कोई किताब लेके नहीं आया करो तू क्यों बोला शाह साहब की बस हो गई है ओ असर दे कायदे चुप कर गिरा बकवास न कर जवाब दे असर दे कायदे का जवाब दे चुप हो जाए आमदा मुखस्सिस ले आमदा मुखस्सिस ला अरे दे जाबिर मरफूअन रद्द कर देने मतलब जो साहब वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं नेक्स्ट डेट रख लें फिर किसी जगह लेकिन जी फैसला हो चुका है शाह साहब मान चुके हैं झूठ है अपनी 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 शिकस्त को छुपाना चाहते हो 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 पागल जरा मौला अली के 70 का नोट करे तू वो भी रिवायत पेश करता है मुनाज़िर शाह ये शोर करने वाला बंदा है मुनाजिर नहीं सिर्फ शोर दे जरिए नाले शिकस्त नहीं छुपनी मर्द बन के उन्होंने फिर उन्होंने उठाओ प्लीज आप मेरे लिए दोनों सारे बोलने में वाले जनाब हैं मेरे ये भी सैयद हैं आप भी इतने एहतराम हैं कि शायद मैं जनाब दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं ये भी आप लेकिन जहाँ आप बैठे हैं वहीं से आप उठेंगे जब हम बोलेंगे फलां बंदा पार्टी उठेगी वो भी पार्टी उठ कर जाएगी दूसरी पार्टी नहीं उठेगी सही है ठीक है जिस पार्टी का बोलेंगे वही बंदा उठेगा वो एक तरीका है आप देखें इन्होंने अपनी बारी पे कर ली है मेरी रहती है ये पूरी हो जाने दो कोई बारी इधर नहीं जानी या अल्लाह का बात है जवाब हो गया ये वैसे ही ये फकत आप गालियां देना चाहते हो और कुछ भी नहीं है गालियां देने के लिए वक्त चाहिए और तुसी रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो बंद करके मेरा मोबाइल तो मेनू दियो ना इन्होंने उठाओ जैसे उठ के वीडियो तो करो यार हजरत झूठियां मूठियां
झूठे मूठे सारे ये नहीं चल सकते, ये झूठे मूठे सारे, झूठे मूठे सारे हक सब यार, हक सब कटो जैसे उठिए, उन्होंने कटो, उन्होंने सीनियर उलमा है दोनों साइडों से दो दो को पहले चलें ऐसे कर लें। उठाओ, आप भी उठे ना, आप दोनों नहीं वजह क्या ये वीडियो में आप उसे उठाओ, उसे उठाओ, मैं उठ रहा उठाओ उठा दो उसे वहाँ से भी उठा यही वजह जो है ना वीडियो में जरा कर देता कि लोगों को पता हो कि किस वजह से ये खत्म हो गया। दो लोग बोलते कि सही होगा ना। आप लोग ये दाखिले पर नहीं उतर भाई हम नहीं बोल सकते, ठीक है नहीं जो मजबूरी आपकी वो बयान कर देना। उसे उठाओ, जो उठिए, उसे उठाओ। जो आपकी मजबूरी है वो वीडियो में आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि क्यों बात हो। बाहर इतनी सपोर्टी खड़ी है, उनको और काम भी है ना। मेरी बात सुने ना, जो ये महिला है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है वो भी कॉल कर रहे हैं 15 पे, हमने किसी और जगह जाना, हमारी और भी कोई ड्यूटी है ना, ठीक है ये एक ड्यूटी नहीं है, ये और भी कोई बर्दाश्त होगी, हमने वहां जाना है। मेरी बात है कि यहाँ मसला क्रिएट होगा, फिर हमारी प्रॉब्लम क्या आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है मेहरबानी आपकी, हमारे मोहतरम में आप जुड़े गए, ये भी दोनों अब उनको उठाएं, मैं उठाऊं, नहीं उनको उठाएं तो मैं उठाऊं। दोनों फ्री हमारे लिए, ठीक है आप पढ़े लिखे मदद आलम ऐसे करेंगे तो फिर हम जैसे लोगों का क्या, एक मिनट बस, एक मिनट उनको उठाओ तो मैं उठाऊं। एक मिनट आप पढ़े लिखे आलम ऐसे करेंगे तो हमारे जैसे जो अनपढ़ लोग हैं उनका क्या होगा। आप ऐसा करें चले गए और सारा करनी है, और सारा करनी है गुरुद्वारे कायदी कोठी है, सारा कायदी कोई नहीं दुनिया में ज्यादा कासर ना दे हो। मतलब ਤੁਸੀਂ पढ़े लिखे बंदे इस तरह करोगे तो बाद में आवाम जो अनपढ़ साढ़े जैसे उन्होंने क्या होगा। साहब आप एक आप और दोनों आप उलमा जो बड़े हैं आप दोनों आप एक उठे तो मैं उठाऊं, उनको उठाओ, उठे नहीं हजरत मेहरबानी शाह साहब उठ गए हैं, शाह साहब उठ गए, मेहरबानी आपकी उठ गए शाह साहब, आप भी उठे उठ गए